Hello everyone. Hope everybody is fine over here. Thank you for joining the session. My name is Dr. Mohammed Shahir Wakar, and today basically this is an orientation program that is based on the CSIM, Certified Information System Security, Certified System Security Manager, and there is basically one of the guy, Mr. Sabir Raza, with my fellow experts in the information security and cyber security, almost having uh, like 20 years of experience in his field. Welcome, Sabir. थैंक यू डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया Uh, आपका thank you for joining the session. He is going to take an oriented this class today, and I have seen like a lot of people actually in this group, but this isn't not joined so far. Maybe they are going to join and listen this webinar and after this session. So there are some people who are here. I'm just giving you the opportunity that if you can just tell your name and what's your background. Just step around 1 minute you have only. So Mr. Aqil Shahzad, please. Yes, sir. My name is Akil Sir, and my background is for cybersecurity from Made University. I did my complete I did my complete bachelor in 2023, and now I'm running my own company, and that's it. Okay, thank you. Sayyid Haidar, Assalamu alaikum. Sir, I'm a final student of computer science at Sayyid University. Along with that, I am also doing a shop related to cybersecurity. Oman Ansari. Sir, I'm a cybersecurity consultant. So what you have done it? Any qualifications you have? सर नो मैंने बस सीसी दिया हुआ है सीसी का एग्ज़ाम दिया था वो क्लियर हो गया था मेरा उसके अलावा गूगल साइबर सिक्योरिटी का कोर्स किया हुआ है मैंने और कुछ फ्री सर्टिफिकेशंस की हुई हैं Okay. जी कैलाश बाबू. जी कैलाश, can you hear me? Okay, Abda Jafar. अस्सलाम एवरीवन अब्दा जाफर मेरा नाम है और मैं दुबई में एक गवर्नमेंट कंपनी में काम कर रही हूँ एज सिक्योरिटी कंसल्टेंट Thank you. Okay, and rest of people who are like Amjad Abbasi. Sir, my name is Amjad Ali Abbasi. I have done masters in computer science. Currently, I'm working with a private bank as a cybersecurity and cyber threat intelligence expert. Right. जी बिलाल अफजाल. जी मेरा नाम बिलाल अफजाल है. मैंने बीएस किया कंप्यूटर साइंस में और करंटली मैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कंसल्टेंट काम कर रहा हूँ. प्राइवेट कंपनी से हम सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइड करते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और दूसरे बैंकिंग और दूसरे इंस्टीट्यूशन. मोहम्मद अफजाल. Sir, my name is Mohammad Afzal. I have done Master in Computer Science. I have qualified my CISM examination in 2023. I have served in Pakistan Air Force for 25 years as a security consultant. Now I have been retired and I am running my IT school here in my local native area. Or I'm passionate to enhance my studies as much as I can. And I have done CCNA, CC, CISM, and now I'm proceeding towards artificial intelligence also. Thank you. Thank you. Mashallah. Thank you. जी नासर Thank इकबाल. नासर इकबाल. Assalamualaikum sir, I'm Nasir Ali and I have just completed my degree from UMT Lahore in 2025 and now I am working as a network engineer in Zone 5G in HQ Islamabad and I want to enhance my skill so that I decided to join your session. Rahman Ansari. Rahman Ansari.
Sardar Sajjad. Assalamu alaikum, everyone. Well, I'm Sajjad Parvez, and I'm working for one of the IT company who's providing my SSP. I'm the lead in the SOC, and I done my master's in IT and almost 20 years of experience in the same field. In the same field in sense of cybersecurity, and I'm just recently cleared my CSAM. I'm also CEH certified. Thank you. Sayyid Haider Hassan. Sir, I'm already done. Okay. There is another Zul Kafi. Kafi. Is right name? Can I pronounce it well? Zul Kafi, I think. Maybe. Okay. Thank you everybody for your introductions. Acha, my name is Dr. Mohammed Shahid Oqar. I'm the president of the 3D Educators. My background is I'm basically working since 35 years in the market. I am a dual PhD in artificial intelligence and cybersecurity. I had started my career in 1991 and actually my first PhD 2004 in AI. And second in cybersecurity, I'm a researcher as well as educationalist and a consultant. Working in like 11 years the global head in England and then in Pakistan and UAE and a lot of things we are doing. So now this session actually is related to the Certified Information Security Manager. And Sabir is here with your like today the speaker of this session, and further he's going to explore about what actually the information security is and what's the requirement and why you can go for CISM. So I'm now basically taking so much time from my side. Sabir, please start your slide and introduce yourself, please. Yes, Sabir. Thank you. Sabir, are you there? Thank you very much, Dr. Shahid Saab. जी प्लीज Now I can hear you. जी स्टार्ट करें आप बिल्कुल इन लोगों से मैंने इंट्रोडक्शन ले लिया है माशाल्लाह सब रेलेवेंट लोग हैं और बिल्कुल बिल्कुल पैशनेट भी नजर आ रहे हैं काफी मैं वही देख रहा था कि दो जो है माशाल्लाह सिजा में ऑलरेडी और इस तरह सारे जो है वो सिक्योरिटी के हवाले से जो है काफ़ी नॉलेज है, काफ़ी जो है ना एक्सपर्टीज़ हैं और एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पे जो है बेसिकली मैं अपने आप को मेरा नाम साबिर रज़ा है और बैक इन पाकिस्तान आई वाज IT हेड इन पोर्ट कासिम अथॉरिटी और आई डिड माय सिज़म बैक इन 2017 और उसके बाद से जो है वहाँ पे मैंने ऑडिट और दूसरी चीज़ें जो हैं वो की। नाउ आई एम इन आयरलैंड और यहाँ पे मुख्तलिफ जो हमारे ग्रुप्स हैं, कम्युनिटी के ग्रुप्स हैं जिसके अंदर IPIP है, प्यारा बेसिकली एक एकेडमिशियन और रिसर्च ओरिएंटेड एक ग्रुप है जिसके अंदर PhDs हैं और हमारा यहाँ से मकसद है कि हम यहाँ पे जो पाकिस्तान में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके साथ कोलैबोरेट करें और उनके साथ जो है वो उनको चीज़ें जो है एक्सप्लोर करवाएं कि यूरोप के अंदर कैसे चीज़ें जो हैं वो रिसर्च वर्क के अंदर या यहाँ पे कोई फंडिंग लेने में या किसी भी तरह की प्लेसमेंट करने में, तो हम उस चीज़ को भी यहाँ पे देख रहे हैं। अभी हमारी एक दो यूनिवर्सिटी से यहाँ से बात हुई। मैं वहाँ पे पाकिस्तान के अंदर एक स्टार्टअप है Tech24 के नाम से, उसका CTO हूँ और इसी तरह एक रिसर्च ओरिएंटेड एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है प्राफ है और एक नॉन जो है आप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन NGO समझ लें जिसका नाम है MRF, महमूद रज़ा फाउंडेशन। उस फाउंडेशन का मकसद ये है कि हम जो रिसर्च एरियाज़ के अंदर जो मैंने यहाँ पे देखे ड्यूरिंग माई स्टे इन आयरलैंड के जितने भी एवरी जो सेकंड पेजेस है या एवरी सेकंड आर्टिकल है या एवरी सेकंड इनोवेशन है या एवरी सेकंड साइबर सिक्योरिटी के प्रोडक्ट है, उसके पीछे एक न एक हमारे नेबर कंट्री के निकलते हैं और हम इसके अंदर क्यों पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। तो बेसिकली मेरी शहीर भाई से बात हो रही थी तो शहीर भाई ने बोला कि अच्छा आप जिससे बात कर रहे हैं
तो चलें एक सेशन ये लेते हैं, इसके अंदर कोई चीज़ चेंज करते हैं। तो बेसिकली मैं यहाँ पे शहीद, वैसे मैंने यही बात की कि माशाल्लाह जो लोग आते हैं वो तो सारे पढ़े लिखे होते हैं, तो यहाँ पे आप सब माशाल्लाह चीज़ें जानते हैं और किताबें भी अवेलेबल हैं। बेसिकली मैं यहाँ पे एज अ ट्रेनर नहीं हूँ, बल्कि एज अ माइंडसेट कोच के तौर पे, क्योंकि इसाका जो है वो एक डिफरेंट माइंडसेट के साथ आता है। और जब हम सिज्म की बात करते हैं तो सिज्म इज टोटली एक बिजनेस ओरिएंटेड, टुवर्ड्स बिजनेस ओरिएंटेड उसके अंदर फीचर होते हैं रादर देन टेक्निकल। तो मैंने कुछ एक फनी सा एक बनाया था इंट्रो, कि मैं कुछ फनी सा इंट्रो करूंगा, फिर शहीद साहब ने दिया तो वो ऑर्गेनिकली ऐसे इस तरह हो रहा है। तो अगर आप लोग बेयर करें तो मेरा फनी इंट्रो भी सुन लें, अदरवाइज जो है हम जो है ना उसको आगे बढ़ते हैं। तो फनी इंट्रो ये था कि मैंने कहा कि भाई मैं आई एम नॉट क्रिकेट कोच, आई एम योर सिज्म माइंडसेट कोच। तो माइंडसेट जो है वो यहां से आप लोग ने ये मान लेना है कि माइंडसेट जो है सिज्म के लिए, इसाका के लिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फॉर दैट पर्पस, but you know we are all techie person, so we have always things about firewalls, routers, switches, and all these stuffs. So for the SISM, it is essential to take out all these techie areas, all these techie synonyms, all these techie jargons from your mind. So उसके लिए ये है कि जनाब क्या है कि जी क्लियर योर कैशे, हम टेकी में बात करते हैं, टेक्निकल में बात करते हैं, तो क्लियर योर कैशे और रिबूट योर, दोबारा से माइंड फ्रेम को रिब्यूट करें और उसको देखें कि किस तरह जो है ये सिज्म के ऊपर कैसे ये आपका माइंड से जा रहा है। क्योंकि बेसिकली हो ये रहा है कि सिज्म जो है, इसाका जो है वो बिजनेस के ऊपर ज़्यादा लीड करती है, ताकि ऑब्जेक्टिव, अब आपने देखा होगा कि बिजनेस की ट्रांसलेशन। वकार भाई ये जो है शेयर स्लाइड हो सकती है? हेलो आपके हेलो, पास स्लाइड है? आपके पास स्लाइड है तो आप शेयर कर लें। नीचे आपके पास बटन आ रहा होगा ये स्क्रीन शेयर का। जी जी शेयर स्क्रीन, ठीक है। फिर इसको एंटायर स्क्रीन शेयर कर लें। मैं एंटायर स्क्रीन ही कर रहा हूँ। स्क्रीन ले आप, ये प्रेजेंटेशन खोल लें आप, प्रेजेंटेशन खोल लें कैस्केड आप कर अपने रहा है, ये आ रही है? राइट व्यू, राइट व्यू। ये आ रही है आपके पास? नहीं नहीं आ रही ये। आप एंटायर स्क्रीन करके उसको शेयर करेंगे तो फिर इसको ऑफ करके दोबारा से स्टॉप शेयरिंग करें और फिर एंटायर स्क्रीन ये शेयर तो करें। शेयरिंग तो ऑन है, शेयरिंग ऑन है। और आप वो लेकर आ जाए, स्क्रीन सामने लाएं, बढ़िया बना दें। अच्छा, आपके पास मैंने भेजा है, आप अपने पास से शेयर कर लें। देर से आइए मेरे पास।
स्क्रीन तो आई थी लेकिन देर से आई थी। देर से आई है। आपकी स्क्रीन आ गई? आप सब लोगों को नजर आ रही है स्क्रीन? Yes, sir. It's visible. अच्छा, ये नीचे से एरो आ रहा होगा आपके पास, तो ये डबल क्लिक, इस क्लिक एरो को क्लिक करेंगे तो थोड़ी बड़ी हो जाएगी स्क्रीन आपकी। एरो को आप क्लिक करेंगे नीचे, फुल जी सामने पे नजर आ जाए। जूम स्टार्ट। जी सामने पे नजर आ रही है स्क्रीन? नहीं, ये बेसिकली ये चल नहीं रही। अच्छा, आप अनशेयर करें, मैं शेयर करता हूँ। अब नजर आ रही है सबको? जी सबको नजर आ रही है स्क्रीन? Yes, sir. ओके साहब, ये मैं कंटिन्यू प्लीज। Okay. So, this is my introduction. और बेसिकली मैंने पाकिस्तान के अंदर मैं एज ए हेड ऑफ आईटी था पोर्ट कासिम अथॉरिटी के अंदर। वहाँ से मैंने कराची यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस के अंदर मास्टर्स किया। फिर वहाँ पे काम वगैरह करने के बाद से हम जो है इधर शिफ्ट हो गए। अब यहाँ शिफ्ट होने का रीज़न क्या है? आपने मेरा नाम देख रहे होंगे कि अर्शी नाज आ रहा है। तो बेसिकली यही है कि ये डाउन साइड है कि वाइफ का लैपटॉप इस्तेमाल करने का ये बड़ा प्रॉब्लम है। तो बेसिकली इसके अंदर यहाँ आने का पर्पज़ भी वाइफ ही बनी कि वो बेसिकली एनेस्थेटिस्ट हैं और उनके साथ फिर इधर हम आ गए, हम लोग सारे है। ये जो है इसके अंदर मेरे पास सीसा, सिज़म, ITL, Prince2 और CCISO की सर्टिफिकेशन है। अभी मैंने यूनिवर्सिटी कॉलेज डबलिन से जो है सर्टिफिकेट डिप्लोमा किया है साइबर सिक्योरिटी के अंदर। और मैं टूवर्ड्स PhD पे जो है वो फोकस कर रहा हूँ। और जो मेरी फील्ड है वो आपने देख लिया है कि साइबर सिक्योरिटी और ये तमाम है। ये आपका कहाँ से इसके अंदर एक आपने देखा होगा कि मैंने लिखा है कि ट्रेन माइंड फॉर सीसाइसिज्म। तो मैं इस पे क्यों फोकस करता हूँ, इस पे मैंने पहले भी बात की कि जो माइंडसेट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आपने इसके माइंडसेट को बिल्कुल एक टैकी से हटके एक सिज्म के फॉर्मेट के अंदर, इसाका जो बोलता है कि आपने बिजनेस की ऑब्जेक्टिव, बिजनेस का विजन, बिजनेस का जो गोल है, उन चीज़ों को देखते हुए अपनी आईटी को, अपनी सिक्योरिटी को, अपनी वॉट एवर यू आर डूइंग, उसको ट्रांसलेट करना है उस गोल के, ताकि क्योंकि अब की दौर में जो है हम ये कहते हैं कि आईटी जो है वो इनेबलर है। पहले जी आईटी को कहते थे कि वो एक बिल्कुल अलग सा है, उसका कोई काम नहीं है। लेकिन नाउअडेज इट इज़ अ इनेबलर, इट इज़ अ कॉस्ट सेंटर। उसकी वजह यह है कि ये इटसेल्फ फैसिलिटेट करता है चीज़ों को आगे बढ़ाने में, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में, विजन, मिशन कंपनी की। तो क्या एक टैकी जो कि फायरवॉल पे काम कर रहा है, जो कि चीज़ें कर रहा है, अगर वो सीसो से, अगर वो CEO से बात करेगा या बोर्ड से बात करेगा, तो वो यही कहेगा कि सर मैं ये फायरवॉल लगा दें और इससे ये हो जाएगा, इससे वो हो जाएगा, ये फला रैंसमवेयर रुक जाएगा या ये हो जाएगा। लेकिन CEO को या बोर्ड को इससे कोई गर्ज नहीं है। उनको गर्ज है कि यार मुझे ये बताओ कि इससे क्या ROI मिलेगा, मुझे बिजनेस के अंदर इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स, इन टर्म्स ऑफ PKR, इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट रिटर्न में मुझे क्या चीज़ मिलेगी।
तो वहां पे एक टेक्निकल एस्पेक्ट में थोड़ा सा चीजें लैग कर रहे होते हैं। तो इसाका ने बेसिकली इस बात पे फोकस किया है कि इफ यू आर गोइंग फॉर अ सीसो और मैनेजर पोस्ट, तो you have to speak the board language. And what is that board language? बोर्ड लैंग्वेज में यही है कि आपने किस तरह उनको डॉलर्स के अंदर, पीकेआर के अंदर, किस तरह उनको आरओआई के अंदर, किस तरह उनको ये चीज बतानी है कि इसका फायदा आपके बिजनेस ऑब्जेक्टिव से कैसे होगा। तो यहाँ जो मैंने लिखा है ट्रेन माइंडसेट और सीसा, ये इट इज फॉर दैट पर्पस कि मैनुअल्स आर अवेलेबल, यूट्यूब्स आर अवेलेबल, आप लोग उसको रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। बट द पॉइंट दैट मिसिंग इज अ माइंडसेट। वंस यू आर डन विथ योर माइंडसेट, देन यू कैन डू और यू कैन पास सिज्म और सीजा। यहाँ पे हमारे पास माशाल्लाह 2-3 लोग हैं जो कि सिज्म में क्वालिफाइड हैं। वो मेरी इस बात से यकीनन एग्री करेंगे। क्यों अफजाल साहब और एक और साहब थे जी, आप एग्री कर रहे हैं या आप समझ रहे हैं कि इस पे कोई चीज और ऐड करनी है? हेलो, हेलो, अच्छा जी जी प्लीज कंटिन्यू करें सर, आवाज आ रही है। शहीद भाई, ये आगे नहीं बढ़ रहा, ये आगे तो हमारा रोड मैप क्या है बेसिकली? सिज्म के अंदर रोड मैप जो है, एक तो ये ओबियसली ये ओरिएंटेशन क्लास है जिसके अंदर सिर्फ इस बात पे एम्फेसिस करना है कि जी माइंडसेट आपने चेंज करना है। आपने मैनुअल को रीड तो आप कर लेंगे, आप डाटा बैंक भी देख लेंगे, आप जो है मॉक एग्जाम को भी कर लेंगे, आप डिफरेंट यूट्यूब भी देख लेंगे, लेकिन आप बिजनेस लॉजिक के हिसाब से, बिजनेस ओरिएंटेड के हिसाब से आप जब तक नहीं सोचेंगे, तो हो सकता है सीजम में या सीसा के अंदर जिन लोगों ने किया हुआ उनको पता है कि इसमें से 2-3 आंसर्स जो है बिल्कुल क्लोज्ड होते हैं। एक जो होता है टुवर्ड्स टेकी होता है, जिसके अंदर टेक्निकल, और बिल्कुल वो सही होता है क्योंकि एट द एंड ट्रांसलेट वही करना होता है। लेकिन फॉर द सीजम तो इसाका ये बोलता है कि नहीं, आप सबसे पहले पॉलिसीज को, बिजनेस को, तो सिज्म जब भी बात करेगा वो पॉलिसीज की, वो बिजनेस की बात करेगा कि बिजनेस की अलाइनमेंट, कि बिजनेस अलाइन कैसे करना है और क्या इसके अंदर चीजें जो है वो ऑब्जेक्टिव कैसे अचीव करना है, ताकि जो भी बिजनेस का या जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन का रोड मैप है उसमें आईटी की अलाइनमेंट होके कैसे वो सक्सेसफुल हो सकता है और कैसे आईटी जो है वो इनेबलर अपना जो उसका काम है वो कर सकता है। तो जब कोई सीसो या कोई मैनेजर ऐसा काम करेगा तो वो बेसिकली एक एसेट होता है फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि यू नो nowadays without IT nothing can be done. So it is important to have a good IT and the mindset for the leader of that group, or mindset for it should be like business oriented. क्योंकि जब हम बात करते हैं सीसो की, या तो इसाका ये कहता है कि जी ये जो है ये एक ब्रिज गैप करता है, कहाँ से? बोर्ड से टुवर्ड्स टेक्निकल पीपल। अब जो एक सिज्म है वो बेहतर, क्योंकि उसके पास टेक्निकल नॉलेज भी है और उसके पास बोर्ड की लैंग्वेज भी है, बोर्ड की नॉलेज भी है। तो जब वो ट्रांसलेट, वो सुन के आता है, वो देखता है, वो वहाँ बात करता है, वहाँ उनकी ज़ुबान में बात करता है, और जब यहाँ आता है तो वो अपने टेक्निकल को बोलता है कि भाई ये काम कर लो। तो वो जो है एक ब्रिज है, और यही माइंडसेट को सिज्म के अंदर चेक करते हैं। सीसा के अंदर थोड़ा सा हटके चेक करते हैं। नहीं, पीछे आप पीछे ही रखें प्लीज। अच्छा, इसी तरह ये जैसे हमने कहा कि चेंजिंग योर माइंडसेट, तो अपना चेंज करें माइंडसेट को, फोकस टुवर्ड्स रिस्क ओरिएंटेड थिंकिंग। अच्छा, क्यों? उसके लिए क्या है रोड मैप में कि ये टेक क्लासेस लें, क्योंकि इस क्लासेस के अंदर जो हम ये क्लासेस या जो हम ये जो एक मास्टर क्लास या एक समझ लें कि एक बूट कैंप कर रहे हैं, उसका पर्पस ये है कि जो भी लोग हैं
वो इस बात को अपना गोल बना लें, इस बात पे मेक श्योर हों कि वो एंटरप्राइज सिक्योरिटी प्रोग्राम को बिल्ड कर सकें और रन कर सकें। बिल्ड आप उस वक्त कर सकते हैं कि जब आपको बिजनेस की पूरी नॉलेज हो। तो जो भी सीसो होता है, सिज्म ये कहता है कि सबसे पहले आप बिजनेस की नॉलेज लें और उसकी गवर्नेंस, उसकी चीज़ों को देखें और उसको अंडरस्टैंड करें कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है और किस तरह होगी। तो अगर हम क्लास की बात करें तो बेसिकली जो हमने शहीद भाई से हमने ये सेट रखी है, तो ये 16 क्लासेस हमने सैटरडे संडे की रखी है, जिसके अंदर ओबियसली आपके तमाम डोमेन्स आएंगे। अच्छा, आप इस डोमेन्स को हमने अगर सिंपल एक स्लाइड में चला के और ये तमाम चीज़ें करना है तो वो तो एक अलग है, वो तो होता ही रहता है। हम यहाँ पे बेसिकली जो मैं बात कर रहा हूँ माइंडसेट की, तो बेसिकली हम रोल प्ले की बात कर रहे होंगे। हम यहाँ पे अपने जो भी एस्पिरेंट होंगे उनके साथ हम एक इंटरेक्टिव सेशन, हर जो भी क्लासेस होगी उसके अंदर उस डोमेन के लिहाज से एक रोल प्लेइंग होगा, जिससे वो उनका माइंडसेट और वो चीज़ें बेहतर तौर पे अंडरस्टैंड करके, और जब वो सिज्म को अपीयर होंगे सिज्म के लिए, तो होपफुली वो अच्छा रिजल्ट आएगा। बल्कि कोई चीज़ गारंटी तो नहीं है, लेकिन आई एम 99% श्योर कि इंशाल्लाह दे विल गेट देयर सिज्म। इसी तरह इसमें यहाँ पे हम जो है सिमुलेशन एग्जाम इसके अंदर है। फिर जो है मैंने कुछ फ्री टूल्स सिज्म के लिए डेवलप किया हुआ है, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। उस टूल्स के अंदर बेसिकली जो मैंने बात की कि बिजनेस माइंडसेट की, कि अगर आप एक पॉलिसी बना रहे हैं तो वो पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, किस तरह होनी चाहिए, तो वो एक टूल वो है जो कि एक पॉलिसी को थोड़ा सा फ्रेम करता है स्टैंडर्ड में और करता है। इसी तरह बिजनेस केस है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब आप एज ए कोई भी टैकी एज ए मैनेजर बनता है तो उसको जो असल मसला होता है वो होता है इंग्लिश मसला नहीं होती, जो असल मसला होता है बिजनेस इंग्लिश। कि आप किस तरह नॉन टेक्निकल को एक बिजनेस जो केस है उसको प्रेजेंट करें ताकि उसकी अप्रूवल वो फौरी तौर पे हो जाए। अदरवाइज वो आपसे लिखेगा कि प्लीज स्पीक, कि ये मुझे बताएं कि ये जो आपने फला एंटीवायरस लिखा है तो उसमें आपने ये लिखा है, ये क्या आपने ये पूरी पूरी टेक्निकल चीजें लिखी हैं। तो एक जो टूल्स है उसके अंदर बिजनेस का प्रपोजल बनाने का, या वो भी एक है कि कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो कि टेकी पर्सन जो हमारे यहाँ मुझ में भी ये लैग था। फिर मैंने इसको सीखा कि कैसे जो है ना इसको अडॉप्ट किया जाए, क्या किया जाए ताकि ये है। तो ये क्लासेस की पूरी हमारी है कि हम इस क्लासेस में कैसे करेंगे। आप लोग के लिए कि जो कि सिज्म करना चाहते हैं, फिर उनके लिए है कि ये तो क्लासेस लें, माइंडसेट देखें, और फिर जो है रिव्यू मैनुअल। तो मैनुअल को जो है वो एटलीस्ट, मेरी ये अपनी रिकमेंडेशन होती है कि एटलीस्ट वो 2 दफा इसको, पहले तो एक बिल्कुल 1 to 0 यानी फर्स्ट पेज टू लास्ट पेज 1 गो के अंदर आपने पढ़ लिया, चाहे आपको समझ आ रहा हो ना आ रहा हो, आपने उसको रीड कर लिया। सेकंड गो जब आप देंगे, सेकंड स्प्रिंट जब आप देंगे, तो फिर आप उसको डोमेन वाइज समझ समझ के उसको चीजें करें और उसको मार्क करते गए। इसी तरह इसाका का जो क्वेश्चन बैंक है उसको करें, और बुक के एग्जाम है, फिर आप करें कि बुक एग्जाम करें और पास एग्जाम और अप्लाई द सर्टिफिकेट। अच्छा, मैंने जब सीसा और सिज्म मैंने साथ दिया था, तो मैं थोड़े से इसकी स्टोरी बता दूं कि अब आप बोलेंगे कि आपने तो ये रिकमेंड करें और आपने खुद क्या किया था। तो सीसा के लिए मैंने काफ़ी प्रैक्टिस की और बैंक्स और ये सारी चीज़ें मैंने मॉक एग्ज़ाम और ये तमाम चीज़ें की। उसके बाद से जब वो पास हुआ तो मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो बहुत हाई हो गया। तो मैंने कहा ओके यार, आई विल गो फॉर द सिज्म एज वेल। तो मैंने बिफोर प्रिपरेशन मैंने सिज्म की डेट बुक कर ली, और देन आई स्टार्टेड कि जी यार मैं इसको रीड करता हूँ। अच्छा, मैंने टाइम मिल रहा था रात को, तो मैं रात को बैठता था और सब सो रहे होते थे, मैं बैठ के, तो बिलीव मी कि मैंने उस 2 महीने में पूरी की पूरी, आप क्या कहेंगे, किताब पढ़ ली। मैंने पूरा का पूरा टर्किश ड्रामा मेरे सुल्तान को देख लिया। तो ये जो था ये, अच्छा उसके बाद जब मैंने वो दिया तो लकली वो हो भी गया। तो मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप लोग भी ड्रामा देखें। मैंने अपनी स्टोरी बताई कि इसके अंदर मेरे साथ मैंने क्या किया था। सर आगे कर लें। हाँ अकील साहब, आपको हंसी आ रही है। तो इसाका और सिज्म, बेसिकली इसाका
all you are aware what is ISACA? ISACA is an Information System Audit Control Association. ये एक अमेरिकन बेस्ड एसोसिएशन है जिसने बेसिकली ऑडिट से काम शुरू किया और अश्योरेंस पे, आईटी गवर्नेंस पे, अश्योरेंस पे, इन सब पे ये काम कर रही है। इन्होंने अपनी सर्टिफिकेट निकाला और इनका बड़ा स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन माना जाता है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के दुनिया के अंदर लोग इसको प्रेफर करते हैं ISC स्क्वायर के बाद, और ISC स्क्वायर के साथ आप इसको कह सकते हैं। और क्योंकि ISACA जो है वो ऑडिट के ऊपर ज़्यादा जोर दे रहा होता है, तो इन्होंने आईटी गवर्नेंस, इन्होंने पूरा इसका जो यानी कि डोमेन है, रियलम है इसका पूरा, उसको उन्होंने फिक्स किया, जिसके अंदर आईटी गवर्नेंस है, रिस्क मैनेजमेंट है, डेटा प्राइवेसी है, आईटी इंश्योरेंस है। अभी इन्होंने AI के ऊपर भी शुरू कर दिया है, ताकि क्योंकि AI अब बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है, वो हर चाहे वो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी हो, चाहे जो भी जगह हो, वो AI आ रहा है, तो उसके ऊपर भी गवर्नेंस के लिए, उसकी ऑडिट के लिए, उसकी मैनेजमेंट के लिए भी इन्होंने इसको शुरू किया। इनका जो कोर है, जो हम सीसम कर रहे हैं, बेसिकली सीसम जो है ISACA का कोर, वन ऑफ द कोर सर्टिफिकेशन है जो उन्होंने शुरू किया था। और अगर आप इसको देखें कि वर्ल्ड वाइड देखें, तो वर्ल्ड वाइड 48,000 जो मैंने सर्च किया और मुझे बताया, सर्च करने के बाद जो मुझे आई फिगर, वो अराउंड मोर देन 48,000 सीजम जो है वो हैं अभी। तो इसका मतलब है कि ये एक बड़ी प्रेस्टिजियस एक सर्टिफिकेशन है। जब आप लेते हैं तो आपका एक स्टेक, और आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो एम्प्लॉयर है, उसके सामने आपका एक स्टेक जो है वो एक ज़्यादा हो जाता है कि हाँ भाई, इसको जो है वो दोनों की चीज़ें पता है, कि इसको बिजनेस का भी पता है और इसको सिक्योरिटी की मैनेजमेंट भी पता है, जिसके ऊपर बेस करते हुए आप एक अच्छी पोजीशन, एक अच्छी जो है जॉब, या एक अच्छी ऑफर जो है आप वो गेन कर सकते हैं। इसी तरह जो ISACA ने बेसिकली इसकी ऑर्गेनाइजेशन, इसने कैसे अपने आप को, इसकी जो आप कह लें कि इसका ऑर्गेनोग्राम है, वो इस तरह है कि इसने लोकल चैप्टर हर रीजन में, हर एरियाज के अंदर खोले हुए हैं। तो अराउंड 230 के करीब इसके लोकल चैप्टर्स हैं वर्ल्ड वाइड, जिसमें से कराची और लाहौर के चैप्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। जब आप ISACA करते हैं तो आप एक तो मेंबरशिप लेते हैं ISACA की अपनी इंटरनेशनल, और फिर आप लोकल चैप्टर्स की लेते हैं, तो इनके पैसे भी होते हैं। तो मैंने ये थोड़ा सा अक्लमंदी की कि मैंने रियाद चैप्टर का जो है मैंने मेंबरशिप ली हुई है, क्योंकि वो बगैर पैसों के ऑफर करते हैं, तो आप भी कर सकते हैं रियाद चैप्टर। खैर, इस तरह की कोर्स सर्टिफिकेशन के अंदर सीसा है, सिजम है, सीरिस्क है, सीगेट है, CDPSC है और कॉबेट है। कॉबेट बेसिकली आईटी गवर्नेंस पे काम कर रहा होता है। अब हम बार बार आगे ये बात सुनेंगे कि यार ये गवर्नेंस क्या है, तो इसको जहन में रखना है कि जी ये गवर्नेंस क्या है। अच्छा, ISACA की अगर हम बात करते हैं तो ISACA की मेंबरशिप फीस जो है वो $135 है, या 145 प्लस लोकल चैप्टर की फीस होती है $50 या $60, इस तरह करके इनकी फीसेस होती है। जब हम सिजम करते हैं तो सिजम की कोई एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप कोई भी बंदा वो सिजम के लिए, टेस्ट के लिए उसको बैठ सकता है, तो उसकी कोई प्री क्वालिफिकेशन नहीं है, उसकी कोई चेकलिस्ट नहीं है कि जी ये ना ये होना चाहिए तो वो सिजम का एग्जाम में बैठेगा। अब जब सिजम आप पास कर लेते हैं तो उस पास करने के बाद से आपको सिजम का टाइटल, आपको पासिंग टाइटल तो मिल गया कि आपने पास कर लिया, लेकिन अभी ISACA ने आपको सिजम का टाइटल नहीं दिया कि आप सर्टिफाइड हैं। ISACA की तरफ से ये टाइटल अभी नहीं आया। वो कब आएगा? कि जब आपके पास 5 इयर्स का एक्सपीरियंस हो और एटलीस्ट 3 साल का जो है वो मैनेजमेंट के अंदर हो एक्सपीरियंस। तो जिन लोगों ने 5 इयर्स गुजार लिए हैं उनके लिए इजी है कि वो इसको इसके साथ इंगेज हों और इसको सिजम को दें, और उसके बाद से फिर वो अपनी सर्टिफिकेशन का क्लेम करें। सर्टिफिकेशन किस तरह क्लेम होती है कि जैसे एग्जाम फीस है, एग्जाम फीस बेसिकली आपकी $575 या $760 है। अगर आप मेंबर हैं ISACA के तो आपको $575 है, अदरवाइज $760 है। तो जब आप इम्तहान क्लियर कर लेते हैं
तो उसके बाद से आप एक फॉर्म भरते हैं और एक फीस जमा करते हैं इसाका को $50 की, जो कि फॉर मेंबर्स और नॉन मेंबर्स वो बोथ आर सेम। तो वो आप जमा करते हैं। वो जो फॉर्म होता है उसके अंदर आप किसी भी सिजम से, किसी भी सीसा से, किसी भी इसाका के जो भी आपने सिजम करे तो सिजम वाले से आपने रिकमेंड करवाते हैं, अपने आप को करते हैं कि हाँ भाई मैं इनको जानता हूँ और ये तमाम चीज़ें हैं। तो वो जमा होता है कहाँ पे? इसाका में, और इसाका फिर उसको चीज़ें चेक करता है और उसके बाद से वो आपको सिजम की सर्टिफिकेट आपके घर पे भेजता है। तो फिर आप ऑफिशियली आप एक सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजर बन जाते हैं। बाज़ केसेस में, बाज़ एप्लीकेशन में ये होता है कि वो ऑडिट करता है, वो परसेंटेज कम होती है, वो ऑडिट करता है, वो कहता है कि नहीं अच्छा जी आपने जो एक्सपीरियंस दिया है उसका ज़रा प्रूफ भी तो देना कि ये जो एक्सपीरियंस है वो क्या है। तो उनका वो प्रूफ, अगर तो वो आपका ऑडिट के अंदर आ गया तो वो आपसे ऑडिट के अंदर आपसे प्रूफ जो है वो मांग रहा होता है, और जब आप प्रूफ दे देते हैं तो फिर आपको वो दे देता है। तो ये सिजम का, अब सिजम के अंदर ये 5 साल जो है बेसिकली ये वेवर भी हो सकता है। वेवर कैसे हो सकता है? वेवर 2 साल हो सकता है, क्योंकि इसाका ने जो है सिजम के लिए 2 साल का कैब लगाया कि 2 साल वेव कर सकता है वो कैसे? आइदर आपके पास सीसा हो या सेस हो तो आपका 2 साल आपका वेव हो जाएगा, या आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो, या 1 ईयर का आपका ऑडिट एक्सपीरियंस हो। तो अब ये नहीं है कि ये सारी चीज मिला के पता चला कि 4 साल का आपका वेवर हो गया, वो ऐसा नहीं है। वो मैक्सिमम आप 2 साल का वेवर ले सकते हैं, और 3 साल आपको अपना दिखाना होगा कि आपने इसके 1, 2, 3 डोमेन के अंदर, किसी भी डोमेन्स के अंदर आपने वर्क किया है एज ए मैनेजमेंट या एज ए हायर लेवल पे। तो ये सिजम का एक पूरा इनका एक स्ट्रक्चर है कि सिजम में आपने एग्जाम कैसे देना है और सर्टिफिकेशन के लिए आपको क्या क्या चीजें स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। प्लीज सेकंड स्लाइड जी। ये फॉर्मेट की हमने बात कर ली थी पहले ही कि 16 क्लासेस होंगी, 2 आवर्स ईच होंगी। आमतौर पे जो आपका बूट कैंप होता है वो होता है 4 दिन का, जिसके अंदर आपका 32 आवर्स जो है, 32 आवर्स जो है वो टोटल इसके अंदर वो कर रहे होते हैं। तो हमने इसी तरह ये किया है ताकि एक, इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि बूट कैम्प में वो बड़ा ही एक फास्ट एंड फ्यूरियस, फास्ट पेस में काम कर रहा होता है, और आपके पास रिटेंशन के लिए बहुत कम वक्त होता है, तो आप रिटेन नहीं कर पाते, और आप until unless के you are very experienced and you are just taking for just to refresh your knowledge, so it is okay. लेकिन if you are a novice or if you are coming from tech background, so you have to retain all the domains, you have to retain all the knowledge set which Isaka is offering. So for that purpose, I believe 16 classes is a good approach, or 2 hours each उसके अंदर, ताकि आपके पास बर्डन भी ना हो और आपके पास पूरा हफ्ता हो जिसके अंदर आप उसको रिटेन कर सकें और चीज़ों को रख सकें। तो ये बेसिकली शेड्यूल इसका सैटरडे संडे है। टाइमिंग वो डॉक्टर शहीर और आप लोग मिलकर डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा टाइमिंग हो। सेशन जो है वो रिकॉर्डेड होगा, बाद में भी आपके पास अवेलेबल होगा। इसमें जो हम फोकस कर रहे होंगे, अगेन मैं आपको फिर वही बात कहूँगा कि हार्ड वर्क तो आपकी होगी प्लस माइंडसेट। अगर आप दोनों को रखेंगे तो यू विल 99% आई एम श्योर कि यू विल गेट योर सर्टिफिकेशन। अगर आप इसमें से आइदर वन इज स्केप्ड तो इट मे नॉट बी। तो हम ये कोशिश इसके अंदर ये करते हैं कि सिजम का, सीसा का या इसाका का जो माइंडसेट है उसके मुताबिक जो है वो ब्रेन को जो है वो टॉगल किया जाए, उसको जो है ट्रेन किया जाए। इसीलिए जो इसमें आपने पहले देखा था कि रोल प्ले, कि हमने रोल प्ले की इसके अंदर बात की हुई, ताकि रोल प्ले के अंदर क्या होता है कि आपकी ग्रैस्पिंग जो है ना वो बड़ी ईजी हो जाती है। अच्छा, फिर ये बात करते हैं कि जी वाई सीसम, सिस क्यों नहीं? भाई सिस भी तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, नो डाउट सिस भी इंपॉर्टेंट है, बल्कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसको गोल्डन स्टैंडर्ड भी कहते हैं ISC स्क्वायर का। लेकिन सिस और सिजम अगेन अगर आप देखें तो डिफरेंस क्या है? सिस जो है जिसको आप CISSP कहते हैं,
वो बेसिकली आर्किटेक्ट और कॉन्फ़िगर सिक्योरिटी के लिए है। आर्किटेक्चरिंग के लिए है कि आपने सिक्योरिटी का पूरी जो है, यानी कि वो टूवर्ड्स, उसका जो गोल है वो टूवर्ड्स टेक्निकल साइड है। जबकि सिज्म अगेन जो हमने पहले से बात कह रहे हैं, जस्टिफाई सिक्योरिटी टू द बोर्ड, कि वो बोर्ड को बता रहा होता है कि सिक्योरिटी क्यों जरूरी है। तो बोर्ड को मेरी आर्किटेक्ट की या टेक्निकल जुबान समझ में नहीं आएगी, तो दैट इज वाई सिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, अगर आप इन दोनों को ब्लेंड करते हैं तो वो जो उर्दू के अंदर है ना कि सोने पे सुहागा, तो इट विल बी डबल द इफेक्ट, यू नो, कि व्हेन यू हैव अ सिज्म एंड यू हैव अ सिस्प, तो इट विल डबल योर इफेक्ट, लेकिन पैसे नहीं बढ़ेंगे, ये बात जहन में रखिएगा। अच्छा, एवरेज सैलरी अगर हम बात करें कि क्या है, तो इसाका ने जो 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 2025 के अंदर जो हमारे पास, आप इसकी जो इम्पोर्टेंट है वो मुख्तलिफ साइट्स हैं जो कि सैलरीज के बारे में बताते हैं। तो इसकी सैलरी जो है 1000 से लेकर 150 तक के रेंज के दरमियान हो रही होती है। और ये इसका जो है, जब आपके पास, क्योंकि इसका मसला क्या है, इसका मसला ये है कि जब भी कोई सिज्म कर रहा होता है, तो जिस भी आप ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो उसको पता है कि इसने 3 साल जो है एटलीस्ट इसने मैनेजमेंट की ऊपर काम किया हुआ है, तो उसको ये पता है कि हाँ इसके पास एक्सपीरियंस है। ऐसा नहीं है कि आपने कोई सर्टिफिकेट किया और विदाउट एक्सपीरियंस आप वो चले गए और आपको वो, तो इसी वजह से इनकी जो वर्थ है वो बढ़ी हुई है कि उसको पता है कि इसने एटलीस्ट 3 साल तो इसने काम किया हुआ है। इसीलिए इसाका ने सिज्म पे, सीसा पे और अपने दूसरे जो कोर इनके हैं उस पर उन्होंने अपनी मिनिमम जो है वो वर्किंग एक्सपीरियंस की लिमिट रखी है, ताकि उस वक्त तक आपको टाइटल नहीं मिलेगा जब तक आप इसको क्लियर नहीं कर रहे होंगे। जी शहीद भाई, सेकंड। ओके, हम जब बात करते हैं सिज्म की, तो सिज्म का डीएनए क्या है, किस तरह सिज्म जो है वो काम करता है, क्या उसके अंदर चीज़ें हैं, उसकी जो मैनुअल्स हैं क्या हैं, उसमें डोमेन्स कौन कौन से हैं, उस डोमेन्स के अंदर किस परसेंटेज से चीज़ें आती हैं, किस किस के क्वेश्चंस आते हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने घंटे का ये होता है। अच्छा, मैंने जो सीसा जब दिया था तो आई वॉज द लास्ट वन जिसने पेपर बेस्ड सीसा मैंने दिया था। मैंने रियाद के अंदर दिया था सीसा, और वो लास्ट था आई थिंक दिसंबर 2015 और 16। तो उसके अंदर ये लास्ट इनका था जिसपे इन्होंने पेपर बेस पे ले रहे थे। उसके बाद से जब मैंने सिज्म दिया तो वो फर्स्ट था जो कि कंप्यूटर बेस पे आ गया था। तो इसके अंदर जो है, जो डोमेन्स हम बात करते हैं, बेसिकली अगर आप डोमेन्स को देखें तो इन्होंने बड़ा ही, आपको नजर आ जाएगा कि ये टूवर्ड्स कितना बिजनेस ओरिएंटेड है, जिसके अंदर गवर्नेंस है। गवर्नेंस क्या है कि डायरेक्शन, कि आपको जहां से डायरेक्शन मिलेगी कि करना क्या है, होना क्या है, कैसे करना है, वो कौन करेगा, वो मैनेजर करेगा, यानी कि जो कि एग्जीक्यूशन करते हैं। हमारे जैसे मुल्कों में भी है कि एक गवर्नमेंट होती है, फिर एग्जीक्यूशन होते हैं कि वो गवर्नमेंट अपने प्लान बनाती है, अपनी स्ट्रेटजिक प्लानिंग करती है। तो इसी तरह गवर्नेंस जो है वो स्ट्रेटजिक प्लानिंग और तमाम चीज़ें करेगी। उसके बाद से रिस्क मैनेजमेंट, कि एक डोमेन, क्योंकि सारी की सारी जो बेसिक आपकी जो पूरा बिजनेस है वो आप कह लें कि जिसका, इसका जो एपीआई है या इसका जो एक मेन जिसके ऊपर पूरा बिजनेस टिका हुआ है होता है, वो होता है रिस्क मैनेजमेंट। जब आप रिस्क को जो है अच्छी तरह से, रिस्क आप कभी भी नलीफाई नहीं कर सकते, रिस्क को अवॉइड कभी नहीं कर सकते, रिस्क ऑलवेज बी देयर। हाँ, आप इसको कम कर सकते हैं। तो इसकी जितनी बेहतर अच्छी मैनेजमेंट होगी, इतना ही बेहतर आपकी जो ऑब्जेक्टिव है, आपका जो गोल है, आपका जो विजन है, मिशन है, वो अकॉम्प्लिश होगा। तो गवर्नेंस से जो है डोमेन्स में 17% क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा, आपको ऐसा नहीं होगा कि आपको लगेगा कि पहले ये गवर्नेंस आएगा, बल्कि ये सारे मिला के आते हैं। तो आपको देखने से होगा कि अच्छा यार ये, या बाज़ अब आपको पता भी नहीं होता कि ये कहाँ से आया, तो बस आप उसको हल कर रहे होते हैं या उसको सॉल्व कर रहे होते हैं। लेकिन जो इनकी बाइफिकेशन है वो ये है कि 17% ये गवर्नेंस से देते हैं, रिस्क मैनेजमेंट से 20%
इनका जो है वो क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। इसी तरह प्रोग्राम डेवलपमेंट से इनके जो है 33% जो है वो आ रहे होते हैं। प्रोग्राम डेवलपमेंट क्या है कि जो हमने पहले बात की कि इस पूरी क्लास का लेने का मकसद क्या है कि ये क्लास के गोल हमारा क्या हो कि हम एक एंटरप्राइज सिक्योरिटी सोल्यूशन जो है वो रन कर सकें, बिल्ड कर सकें। तो प्रोग्राम डेवलपमेंट बेसिकली यही है कि आपका एक आईटी का या इन्फोसेक का जो पूरा प्रोग्राम है वो कैसे गवर्न होगा, कि वो कैसे बिल्ड होगा, वो कैसे रन होगा, और वो तमाम के तमाम क्या होगा, उसके अंदर हर चीज़ आ रही होगी। जब आप इन्फोसेक की बात करते हैं, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की बात करते हैं, तो इसके अंदर आपके पास पीपल्स भी आ जाते हैं, इसके अंदर आपके पास प्रोसेस भी आ जाते हैं, इसके अंदर आपके पास टेक्नोलॉजी भी आ जाती है, इसके अंदर आपके पास डेटा भी आ जाता है। तो बहुत सारी चीज, ये एक 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 बड़ा अम्ब्रेला है जिसके अंदर रहते हुए आपको चीजें करनी होती हैं। तो इसको बिल्ड करना, इस प्रोग्राम को मैनेज करना, इसको करना, ये सिज्म का एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। एक बड़ा ही समझ लें कि उसका एक प्लस पॉइंट होता है कि वो कैसे प्रोग्राम को डेवलप करे और मैनेज करे। इसी तरह इंसिडेंट मैनेजमेंट, जाहिर सी बात है, आप सारी चीज़ें जो है वो मैनेज तो आप कर रहे हैं, आप चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कभी ना कभी कोई ना कोई इंसिडेंट हो जाता है। हमारी लाइफ में भी ऐसा ही है कि हम सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, लेकिन कोई ना कोई चीज़ें गलत हो जाती हैं। लेकिन जब वो गलत हो जाती है या कोई इंसिडेंट हो जाता है तो हमें क्या करना चाहिए? तो यहाँ पे वो ट्रेनिंग या वो सिज्म की अप्रोच कि जब इंसिडेंट हो तो करना क्या चाहिए, और ये हम चीज़ें देखेंगे रोल प्ले के अंदर। और बाय द वे अभी एक और रोल प्ले आने वाला है इस सेशन में भी, तो गेट रेडी। कितने लोग रेडी हैं? प्लीज रेज योर हैंड। सब सो रहे हैं या जाग रहे हैं? शहीर भाई जाग रहे हैं सर, सब जाग रहे हैं। मैं तो जाग रहा पक्की हूँ, बात बाकी है? का पता नहीं। या श्योर आज सर, बाकी का आप मैं तो जाग जाग रहे हैं, बाकी का पता नहीं। हाँ भाई, बाकी भी जाग रहे हैं। जी सर जी सब जाग रहे हैं, सब जाग रहे हैं सर सब। तो भाई कुछ बोले बोले ना, ताकि पता चले कि जाग रहे हैं, उन्हें कैसे काम चलेगा ऐसे। सर मुझे एक चीज बताइए कि ये स्टेयरिंग कैपेसिटी इज इक्विवेलेंट टू D1, व्हाट डज दैट मीन? हाँ, बेसिकली D1 क्या है? आपका डोमेन 1, ठीक है। तो ये मैंने इसको, ये डोमेन 1 कौन सा है आपका? यही गवर्नेंस। तो जब आप स्टीयरिंग, ये कुछ बज़वर्ड हैं कि जब आप बिजनेस की बात कर सुने, जब आप बोर्ड का जिक्र सुने, जब आप स्टीयरिंग कमेटी का जिक्र सुने, तो आपको ये अंदाजा लगाना चाहिए कि ये गवर्नेंस की बात कर रहा है, और आप गवर्नेंस के हिसाब से इसको सॉल्व करें। जब आप सुने कि मैनेज रिस्क या लॉस है या जी कोई चीज और है, तो आप किस चीज का जिक्र करें कि जी ALE का, कि एनुअल लॉस कितना हो रहा है, और ये जो पूरा फिगर हमारे पास मैथ की है उसका। तो ये इसका इंसिडेंट मैनेजमेंट का है कि इसके अंदर एक दिया हुआ है कि अगर आपको दो, आमतौर पे यही होता है कि जितने भी माशाल्लाह हमारे पास काफ़ी सीनियर लोग हैं, तो उनको पता है कि सबसे ज़्यादा मसला कब होता है? सैटरडे संडे में और रात को। कि कभी रात को अचानक कॉल आए कि जी ये हो गया है, अब आप सो रहे हैं और आपने क्या करना है, या सैटरडे संडे को आप अपनी फैमिली के साथ आउटिंग पे कर रहे हैं और जनाब हाईवे पे बैठे खाना खा रहे हैं और कॉल आ जाती है, तो आपने क्या करना है? तो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सिज्म के हवाले से क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट, इन्वोक द प्लान, नॉट फिक्स। ऑल्दो के सिज्म अपने सबॉर्डिनेट को, अपने स्टाफ को कहेगा कि क्या करना है, क्योंकि जो उसको प्रैक्टिकली करना है वो तो करना ही है। लेकिन इसको, जी कुछ कह रहे हैं अफजाल साहब? प्लीज अनम्यूट कर लें, अगर आप कुछ कह रहे हैं तो कहें, या अनम्यूट कर लें प्लीज। थैंक यू। तो फर्स्ट इसके अंदर क्या है? अगर आप इंसिडेंट मैनेजमेंट की बात आ रही है तो आपके जहन में क्या आ जाएगा कि मुझे पहले प्लान की तरफ जाना है। अगर वहां पे ये हो, क्वेश्चन ये हो कि जनाब उसने कहा कि जी क्या मैं फायरवॉल को अनप्लग कर दूं, मैं जी पूरा सिस्टम को अनप्लग कर दूं, और लोग ये भी करते हैं कि चलो फौरी तौर पे ये कर दें, या पावर ऑफ कर दूं। तो एज अ सिस्टम आपको क्या देखना है? आपको ये देखना है कि जी सबसे पहले इन्वोक प्लान,
कि आपका इंसिडेंट का एक प्लान होना चाहिए, एक पॉलिसी होनी चाहिए, पूरा रिस्क मैनेजमेंट, इंसिडेंट रिस्पांस टीम होनी चाहिए जो आपने बनाई हो। कहाँ पे? प्रोग्राम डेवलपमेंट में आपने पूरी इंसिडेंट की रिस्पांस टीम, रिस्पांस एक्सरसाइजेस, इंसिडेंट एक्सरसाइजेस, ये तमाम किया। तो आपने सबसे पहले अपना प्लान एग्जीक्यूट करना है और उस प्लान की चेकलिस्ट के मुताबिक जो भी रिस्पॉन्डर्स होंगे वो काम कर रहे होंगे। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर आप अनप्लग कर देते हैं तो बेसिकली या आप पावर ऑफ कर देते हैं। फॉर इंस्टेंस कि पहला एक आता है कि यार मैं पावर ऑफ कर दूं, अटैक हुआ, चलो पावर ऑफ कर दूं ताकि मेरी परसिस्टेंस जो ख़त्म हो जाए। तो आप सबसे बड़ा मसला क्या कर रहे हैं कि एविडेंस, कि जो उसका एविडेंस है वो ख़त्म हो जा रहा है, जो कि ऑन फ्लाई एविडेंस था, जो कि हार्ड डिस्क पे होगा वो तो इट विल बी देयर, लेकिन जो ऑन वायर एविडेंस था वो ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए ये है कि एक आपने सिज्म का के हिसाब से उसने कहा कि फर्स्ट इन्वोक द प्लान, नॉट फिक्स। ये तमाम इसके ये डोमेन्स हैं जो बिल्कुल मैंने एक कंसाइज करके आपको बताएं। इसको आगे भी हम देखेंगे इसकी पूरी चीज़ें। एग्जाम के अंदर जो सिज्म का एग्जाम है वो बेसिकली 150 क्वेश्चंस होते हैं, 4 आवर का होता है, और इसके अंदर कोई ये नहीं होता कि कोई पासिंग या फेलिंग का कोई स्कोर इन्होंने लिखा हुआ है, ना वो बताते हैं इस तरह की चीज़ें। लेकिन ये है कि आमतौर पे 450 नंबर जब आते हैं तो वो आप उसको अपने आप को पास, आप आमतौर पे पास होते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये नंबर फिक्स हो। तो ये सिज्म जो है अपने हिसाब से, या इसाका अपने हिसाब से इसको देखता है कि उसको कितने, क्योंकि ये जितनी भी बड़ी सर्टिफिकेट होते हैं ये बेसिकली ये देखती हैं ताकि अपनी वैल्यू बनाने के लिए कि कितने बंदे इन्होंने हर साल पास करने हैं या पर एक साल में पास करने हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर आप मार्केट से ज़्यादा पास करेंगे तो उनकी वैल्यू कम होगी। तो अल्टीमेटली इनकी जो है वो जो मार्केटिंग है वो इस तरह की है कि आपने मार्केट में कम रखने हैं ताकि उनकी वैल्यू, जो कि सिज्म जिन्होंने किया हुआ है या सिस्प किया हुआ है या जिन्होंने कोई भी ऐसी अच्छी सर्टिफिकेट की हुई है उसको वो, तो ये हमेशा पासिंग मार्क्स जो है उनका वेरिए करता है। लेकिन आम तौर पे 450 नंबर अगर आ जाएं तो इट कंसिडर कि आप वो पास है। अब जैसे कि यहाँ पे हमने देखा कि 4 डोमेन्स हैं। जब हम इन डोमेन्स में जाते हैं तो इसके अंदर हमें इसाका जो है सिज्म के लिए 37 टास्क भी देता है कि आपने ये टास्क करना है। अच्छा, ये टास्क क्यों इंपॉर्टेंट है या इनकी क्या ज़रूरत है या ये कैसे हेल्पफुल है? बेसिकली जब आप किसी भी चेकलिस्ट के ऊपर काम कर रहे होते हैं, अगर आपने कोई चेकलिस्ट पहले से बना ली है तो आपका तमाम का तमाम काम बड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि आपने सिर्फ उस चेकलिस्ट को फॉलो करना है और आपने जो है, ताकि, और चूंकि वो चेकलिस्ट पहले से वेरीफाइड होती है तो आपका काम बिल्कुल एक एज पर स्टैंडर्ड हो रहा होता है। तो इसीलिए इन्होंने यहाँ पे ये 37 टास्क दिए हुए हैं कि ये 37 टास्क तो सिज्म ने करना ही करना है, और वो हर डोमेन के हिसाब से है कि डोमेन 1 में 6 टास्क होंगे, उसके बाद से कुछ और टास्क डोमेन 2 में होंगे, तो वो टास्क उसने करना ही करना है। फिर ये 200 प्लस नॉलेज स्टेटमेंट है इनकी। तो ये नॉलेज स्टेटमेंट क्या है? नॉलेज स्टेटमेंट ये है कि आपका जो टास्क है उसको करने के लिए जो आपकी रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट करें कि आपका पहला टास्क है कि आपको पॉलिसी बनानी है गवर्नेंस के लिए। तो पॉलिसी के लिए भाई आप पॉलिसी कहाँ बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, किसको देख के बनाएंगे? तो आपको कोई फ्रेमवर्क चाहिए। तो इसाका कहता है, इसाका बेसिकली रेकमेंड करता है ISO 27001 को, नेस्ट को फॉर ISMS और सिक्योरिटी की अपनी कंट्रोल्स बनाने के लिए, और गवर्नेंस के लिए वो रिकमेंड करता है कॉबेट को। ऑल्दो कि आप टोगाफ को और दूसरे जितने भी जो गवर्नेंस के आर्किटेक्ट हैं उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, इट इज़ अप टू यू। लेकिन इसने अपने आप को एटलीस्ट आपको एक नॉलेज अम्ब्रेला बना के दिया है कि आप इसमें काम करते हुए चीज़ें करेंगे तो आपका काम उस स्टैंडर्ड का हो जाएगा। ये जो क्वेश्चंस आते हैं ये 4 डोमेन से आते हैं। इसमें टास्क तो नहीं हो रहा होता है, लेकिन टास्क की चीज़ें भी आपको समझ में आती है कि हाँ भाई पॉलिसी से हवाले से कोई बात हुई या उसने कोई फ्रेमवर्क का पूछ लिया कि ये फ्रेमवर्क जो है वो आप कैसे इस्तेमाल करेंगे, कुछ भी। तो ये बेसिकली आपको इन सबको जो है इन सबको अपनी मेमोरी के अंदर इन सबको जो है
इसको रखना पड़ेगा, रिटेन करना पड़ेगा। अब रिटेन करने के लिए क्या आपको हाफिज बनना है? अगर आप हिफ्स करेंगे तो वो एक लंबा प्रोसेस है। तो उसके लिए अगेन जो हमने पहले बात की, रोल प्ले, कि हम रोल प्ले से इसको, ये चीज़ों को अडॉप्ट करेंगे ताकि हमारी अडॉप्शन जो है वो बेटर हो और हम क्लोजेस्ट टू ईसा माइंडसेट के पास आए, ताकि जब आप इसको अटेम्प्ट करने जाएं तो आप बेहतर तरीके से प्रिपेयर हो और बेहतर तरीके से अटेम्प्ट कर सकें। कंप्यूटर बेस्ड होता है, मल्टीपल चॉइस होता है इसके अंदर 2 चॉइस बड़े ही क्लोजेस्ट होंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार ये तो जो है ना, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो जो रूल ऑफ थंब है वो ये है कि ऑलवेज गो विद द बिजनेस ओरिएंटेशन, कि हमेशा बिजनेस की तरफ आप जाएं अपने आंसर को देखते हुए, तो वो आपका आंसर करेक्ट होगा मोस्ट ऑफ द टाइम, बल्कि एवरी टाइम। सर प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। ये जी मैनुअल जो है आपका वो 4 डोमेन्स पे है। हर डोमेन के अंदर उसने चैप्टर्स, मुख्तलिफ चैप्टर्स दिए हुए हैं, उसने पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट ए के अंदर उसने थ्योरेटिकल चीज़ें डाली हैं, पार्ट बी में कुछ उसने स्टेटमेंट और इस तरह की चीज़ें डाली हैं। तो ये पूरा डोमेन 1 इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी जो हमने देख लिया कि गवर्नेंस का है, रिस्क मैनेजमेंट है, इसमें क्या काम करता है सिज्म में, इट कवर्स रिस्क, लाइकलीहुड, इम्पैक्ट, बिलोंग्स टू बिजनेस, एक्सक्यूज मी, कि बिजनेस से क्या फ़र्क इम्पैक्ट आ रहा है और क्या है। तो बेसिकली ये आईटी के ऊपर बात नहीं है, बल्कि ये बात है कि बिजनेस के ऊपर आपके पास कैसा रिस्क आ रहा है और उसको देखते हुए आप अपनी आईटी को उससे अलाइन कर रहे होते हैं। सिक्योरिटी प्रोग्राम डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट, हमने बात की थी कि सिज्म जो है वो इतना क्वालिफाई होना चाहिए कि वो रन कर सके और डेवलप कर सके एक सिक्योरिटी प्रोग्राम को और उसको मैनेज कर सके। इसी तरह सिक्योरिटी इंसिडेंट, ऑब्वियसली जब आप कोई भी प्रोग्राम कर रहे होते हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कोई काम कर रही होती है, तो उसमें कोई ना कोई इंसिडेंट हो सकता है। तो उस इंसिडेंट को कितना मिनिमाइज करना ताकि बिजनेस का ऊपर इम्पैक्ट कम से कम हो और बिजनेस आपका रन हो सके, ये आता है आपका इंसिडेंट मैनेजमेंट प्रोग्राम के अंदर। जी शेर भाई, सेकंड सीजन कॉन्टेक्स्ट, अगेन इसमें वही चीज हम बताइए जिसमें हम जो है पहले से इसका जिक्र कर रहे हैं कि सिज्म का कॉन्टेक्स्ट आप ये समझ लें कि ये अलाइनिंग विद बिजनेस ऑब्जेक्टिव है। बस इसको एज ए रूल ऑफ थंब आपने इसको लेके चलना है कि यार मैं जो ना पहले बिजनेस को देखूंगा, पहले मैं पॉलिसीज को, गवर्नेंस को देख के और फिर मैं टेक्निकल चीज़ों को की तरफ आंसर के अंदर मैं बाद में देखूंगा। इसके अंदर कोर पिलर्स हैं कि स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट, जाहिर सी बात है जब आप गवर्नेंस, आपको बोर्ड आपको या सीईओ आपको जब ये कहता है कि फला काम करना है या ये काम करना है, तो आप कैसे अपने आप को स्ट्रेटेजिक अलाइन करते हैं उस स्ट्रेटजी के, उस विजन के, उस ऑब्जेक्टिव के, उस गोल से। तो आपको ट्रांसलेट करना पड़ता है, आपको देखना पड़ता है कि यहाँ पे जो ये गोल है वो कैसे अचीव होगा। फर्ज करें कि फॉर एग्जांपल, फॉर इंस्टेंस, अगर कोई ये कहता है कि जी यार हमें जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक में हमारी प्रेजेंस होनी चाहिए, हमारा पोर्टल जो है वो रहना चाहिए, तो इट मीन्स कि वो ये बात कह रहा है कि आपका डाउन टाइम कम होना चाहिए। ठीक है, तो हम कौन से कंट्रोल पे काम करेंगे या कौन से हमने क्या चीज़ सीखी कि जो सीईओ ने कहा कि भाई यार ये जो ना हम 99% अवेलेबिलिटी चाहता हूँ मैं। तो जब उसने ये बात की तो आपको ये देखना है कि एज अ सीसो आपने ये देखा कि जनाब ये जो है डाउन टाइम की बात कर रहे हैं, तो आपका बैकअप प्लान, आपका आरटीओ, आपका ये तमाम जितने भी इंडिकेटर्स हैं उन पे आप काम करके अपने सिस्टम को बताएंगे। और फिर जब आप ये, अगर उसके लिए आपको कोई चीज़ें लेनी है, कोई टेक्नोलॉजी ख़रीदनी है, कोई आपको प्रोडक्ट लेनी है, तो आपने पूरा बिजनेस केस बना के उस बिजनेस केस को आपने ये नहीं दिखाना कि ये जी ये काम करेगा, बल्कि जो उसने बात कही थी उसके मुताबिक उसको बताना है। बिजनेस इंग्लिश के अंदर ही, बिजनेस
लैंग्वेज के अंदर ही कि भाई ये जो है इस तरह ये डाउन टाइम हमारा ये कम हो जाएगा, और अभी हमारा डाउन टाइम जो है वो इतना है, अगर हम इसको लगाएंगे जो कि इतना कॉस्ट कर रहा है, हमें फ़र्ज़ करें कि 1 लाख का कॉस्ट कर रहा है और हमारा डाउन टाइम की वजह से हमारे 5 लाख जो है वो नुकसान हो जाता है, तो अगर हम 1 लाख इसमें लगा देंगे तो हम 4 लाख की बचत कर सकते हैं। तो जब आप बोर्ड को और सीईओ को आप बजट दिखाएंगे कि कितनी बचत है, तो डेफिनेटली वो आपका प्रपोजल जो है वो फौरी तौर पे अप्रूव कर देगा, ना बोर्ड रुकेगा ना आपका जो है वो सीईओ को रुकेगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। सेकंड स्लाइड शहीद भाई। Okay. सिज्म अगेन, थिंक लाइक अ सीसो। अब सीसो कौन है भाई? सीसो जो है अ लीडर हो अलाइन आईटी सिक्योरिटी विद बिजनेस ऑब्जेक्टिव। तो ये जो लाइन है इसको आप लोगों ने हिफ्ज कर लेना है कि अलाइनमेंट है विद बिजनेस ऑब्जेक्टिव से। जी शहीद भाई सेकंड। ये एक स्टोरी थी सिज्म की, या आप इसको पढ़ें कि उसने क्या किया कि एक दफ़ा सीसो आया, वो एक इमरजेंसी किट लेके आया अपने पास, कॉफ़ी का मग था, स्ट्रेस बॉल था, और और एक स्टैक था, प्लीज रीड द पॉलिसी। तो इस पूरी स्टोरी के अंदर अगर आप पढ़ेंगे तो इसके अंदर आखिर में जो चीज़ है कि सिज्म जो है वो फोकस कर रहा होता है गवर्नेंस, रिस्क, कम्युनिकेशन और पेशेंस, लॉट्स ऑफ पेशेंस। कम्युनिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब कोई भी इंसिडेंट होता है तो आपको कम्युनिकेट करना पड़ता है किसको? टू योर सीईओ, टू योर बोर्ड, टू योर लाइक स्टेक होल्डर्स, ठीक है, और फिर आपको अपने लॉयर्स को या अपने आपके जो भी आपके लीगल टीम होगी उनको। तो इसके अंदर आपको उनको कम्युनिकेशन उनकी अपनी जुबान में। तो ये सिज्म के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट जो है कि उसको बिजनेस नॉलेज, उसको बिजनेस लैंग्वेज, उसकी बिजनेस ओरिएंटेशन ज़्यादा स्ट्रांग हो। फर्ज करें कि आप एक टेक पर्सन है जिसने 10 साल जो है वो फायरवॉल उसमें, अब नाउ यू हैव चांस टू बी अ सीसो। तो आपके जहन में जो अपना 10 दिन का टारगेट आना चाहिए वो ये आना चाहिए कि बिफोर गोइंग टू द टेक्निकल नॉलेज आई शुड गो फॉर द बिजनेस नॉलेज। तो यू विल have a meeting with the finance manager, the business manager, and all these stuffs. So you will get the proper business knowledge. What are their objective? Why they are exist? सबसे पहले तो बिजनेस ये बताते हैं कि वो बिजनेस है तो वो बिजनेस क्यों है, why they are existing, उनका रीजन ऑफ एग्जिस्ट क्या है। तो जब आप वो रीजन ऑफ एग्जिस्ट को देखेंगे तो वहां से आपको अपनी स्ट्रेटजी मिलेगी, और फिर आप उसको जब अपने ट्रांसलेट करेंगे तो बेसिकली आप थ्राइव कर रहे हैं, आप यू बिकम अ इनेबलर इन थ्राइविंग दैट ऑर्गेनाइजेशन। तो फिर वो आपको बड़ी सर पे आंखों पे बिठा के बिल्कुल रखेंगे कि हाँ भाई नहीं यार ये जो ना इसको जाना नहीं चाहिए भाई, ये जो है ये तो हमारे बड़े काम का है, इसको जो हम अगर जा भी रहा है तो इसको ऑफर करो भाई, ये करो वो करो। लेकिन फॉर दैट यू हैव टू वर्क हार्ड, you have to think like a CISO, like a SISM mindset. Second page. Oops, लो भाई रोल प्ले आ गया जी। डेटाबेस सर्वर हैक्ड हो गया है 3 AM पे। आप हैं मोहम्मद अफजाल साहब? सर कैन यू अनम्यूट? हेलो मोहम्मद अफजाल साहब, you there? No. So anybody wants to be a CISO? हेलो शहीर भाई, सब सो रहे हैं क्या? I want to give the answer, but I'm driving. Sorry, man. Oh, sorry. It's okay, it's okay. आपने डेटाबेस सर्वर इतनी अहम मशीन हैक करवा दी है
जाहिर बात है सब डर ही जाएंगे, करें तो क्या करें। अच्छा चले भी ठीक है, open चले वो आप ऑन करें, इसको ऑन करें। चले जी, सर्वर हैक हो गया, 3 बजे आप सीसो कंपनी है, तो आप क्या करेंगे? लेट्स सी हम क्या करेंगे। तो शहीर भाई सेकंड, ये पूरा प्लेबुक है सीसो के लिए कि 3 AM को एक कॉल आती है कि जनाब हमारा सर्वर जो है वो डेटाबेस सर्वर था, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, और जी उसके अंदर क्लाइंट की जो है ना बड़ी चीज़ें हैं, और आपका वो जा रहा है यूरोप में भी जा रहा है, तो जो GDPR भी लग जाएगा, PI2 भी लग जाएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं, पेनल्टी लग जाए, तो अब इसकी तो नींद उड़ गई। तो सबसे पहले एज अ सीसो और सिसम के इसमें कैसे किया हुआ, ये प्लेबुक कैसे बनाई हुई है कि टाइम सीसो का क्या एक्शन होना चाहिए, सिस्म का कौन सा डोमेन इसके अंदर फॉल कर रहा है, और वो क्या बात करेगा अपनी टीम से, अपने अपर मैनेजमेंट से, और बाय हिमसेल्फ वो अपने आप से क्या चीज़ देख रहा होगा। तो बेसिकली सबसे पहले जब हमने पीछे देखा था कि एक्टिवेट IR प्लान, IR प्लान क्या है? इंसिडेंट रिस्पांस प्लान। तो जो कि पहले से सीसो ने बना के रखा, उसको अप्रूव करवाया फ्रॉम द बोर्ड, और उसको तमाम चीज़ें की। तो एक्टिवेट IR प्लान, कंटेन एंड प्रिजर्व, जो हमने बात की कि जो भी आपका एविडेंस हुआ है, जो भी चीज़ें हुई हैं, उसको कंटेन करना और प्रिजर्व करना। उसके बाद से क्लासिफाई वो करेगा कि बिजनेस इम्पैक्ट क्या हुआ, कि इससे क्या नुकसान हो रहा है, कि एक पूरी डेटाबेस गई है, या डेटाबेस के बारे में अभी ये नहीं पता कि कितनी इंफॉर्मेशन निकली है। अभी सिर्फ ये हुआ है कि यार एक लॉगिन अटेम्प्ट हुआ है और जो कि सक्सेसफुल हुआ था। तो अभी डाटा इन्फिल्ट्रेशन का जो है ना वो एस्पेक्ट नहीं पता। तो आपने इम्पैक्ट देखना है कि अगर नहीं हुआ तो क्या हुआ, अगर सिर्फ ये हुआ है तो क्या हुआ है। तो ये जो सिस्टम की डोमेन में, ये कौन से में? इंसिडेंट मैनेजमेंट। अपनी टीम से क्या बात कर रहे होंगे कि ओब्वियसली पीछे तो आपको वो काम करना है कि भाई पहले आइसोलेट नेटवर्क कर दो, ताकि परसिस्टेंस जो अभी है अगर है तो वो ख़त्म हो जाए, और टेक द फॉरेंसिक इमेजेस, डोंट पावर ऑफ, कि भाई पावर ऑफ नहीं करना, वरना तो आपकी सारी की सारी फॉरेंसिक और सारी चीज़ें जो है वो रह जाएंगी। और अपने पास अपना सिस्टम का सवाल ये होगा, सीसो का सवाल ये होगा कि क्या डाटा मेरे पास से गया हो सकता है, और कब तक मैं उस डाटा को वापस अचीव कर सकता हूँ, या क्या हो सकता है कि हैकर ने जो है वो डाटा उड़ा दिया हो, इन्फिल्ट्रेट ना किया हो, डाटा को माइग्रेट ना किया हो, लेकिन उसमें से उड़ा दिया, उसने रॉज उड़ा दी हो, एक दिन की रॉ उड़ा दी होगी पूरी। और आपके पास अगर हज़ारों की तादाद में इनपुट्स हो रहे हैं एक दिन में, तो बेसिकली आपको वो देखना है कि वो कैसे होगा। तो ये सारी है। फिर दूसरा एक्शन जो है, नोटिफाई द एग्जीक्यूटिव्स और लीगल, स्टार्ट रेगुलेटरी लॉक के रेगुलेशन के अंदर के क्या इसके अंदर अगर आ रही है, तो यकीनन आपको अगर पाकिस्तान में है तो आपको कौन कौन सी रेगुलेटरी अथॉरिटी है जिनको आपको इन्फॉर्म करना होगा। तो ये सारा किस में आता है? ये आता है गवर्नेंस और इंसिडेंट, यानी D1 और D4 के अंदर। CEO को यकीनन आपने फौरन बताना है, घंटे भर के अंदर बता देना है। ये नहीं करना है कि आपने सुबह का इंतजार करना है या चीज़ें करनी है, आपने कोई अच्छा वक्त देख के आपने, लेकिन कम से कम आप 2-3 घंटे के अंदर बता दें कि कंफर्म जो है ना वो DB ब्रीच हुआ है और क्या क्या है। और आप सिर्फ ये ना बताएं, बल्कि ये भी आप बताना है कि आपने अपनी चीज़ें एक्टिवेट कर दी हैं और वी आर वर्किंग ऑन दैट। सिर्फ ये आपने बता दिया कि भाई ये हो गया है, तो वो बोलेगा आप तुम क्या कर रहे हो। तो आपने ये भी उस साथ साथ बता देना है कि भाई ये चीज़ ऐसे हैं और हम ये काम करें। तो उसके लिए यकीनन आपके पास पहले से प्रिपेयर्ड अगर नहीं होगा, आप पहले से प्रिपेयर्ड नहीं होंगे, तो आप नहीं कर सकते। तो उसके अंदर एक ड्रिल भी आपको पहले से करनी होती है कि बिफोर के इंसिडेंट। बाज़ दफ़ा सीसो खुद भी ये ड्रिल करते हैं अपने मैनेजर्स को जगाने के लिए कि रात 3 बजे वो कहते हैं कि भाई रिस्पॉन्स अवेक हो जाए और ये हैक हो गया है, और मैसेजेस वो डाल देते हैं ताकि अब देखें कि टीम क्या रिस्पॉन्स करती है। तो ये भी इसके अंदर इम्पॉर्टेंट है कि आप ड्रिल कैसे करते हैं और क्या है, ताकि जब आप अपना IR प्लान एग्जीक्यूट कर रहे हो तो एवरीबडी शुड नो कि
व्हाट ही हैज़ टू डू। अदरवाइज अगर वो फर्स्ट टाइम हो रहा होगा तो पैनिक सिचुएशन एट हाई होगी और आप जो है उसको chaos हो सकता है। तो अगेन आपका चीज़ें जो है ना वो आगे पीछे हो जाए, गड़बड़ा जाएंगी सारी चीज़ें। तो आपको ये चीज़ देखनी है। उसके बाद से आपको RTO वर्सेस एंटिटी डिसीजन, BCP जिसके अंदर डोमेन है BCP यानी कि बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग, DR आपने बिजनेस कंटिन्यूटी की थी D4 के अंदर कि आपका अगर कोई इंसिडेंट होता है जो कि इंसिडेंट प्लान के अंदर होता है कि कोई भी इंसिडेंट अगर होगा तो मेरा ये बिजनेस कैसे रन होगा, एटलीस्ट ये बिजनेस मेरा कैसे रन होगा। डाटा रिकवरी, आप अगर आपका डाटा सेंटर हैक होता है तो आप सेकंड डाटा सेंटर फला इस तरह करते हैं। तो टू बिजनेस के रीस्टोर कितनी देर में हो जाएगा जी? 6 घंटे में। फेल ओवर कॉस्ट क्या है जी? इतनी कॉस्ट। तो ये सारी की सारी आपको आपके जहन में एज अ सीसो सिज्म एज अ लीड आपके जहन में होगी, जबकि आपका स्टाफ जो कि मैनेजर और दूसरे होंगे वो टेक्निकल तौर पे काम कर रहे होंगे। फिर सेकेंड डे में आप बोर्ड के पास जाते हैं, बताते हैं कि क्या हो गया है, किस तरह हुआ है, और फिर आप बताते हैं कि चूंकि ये ब्रीच हुआ था, बिकॉज ऑफ दिस ब्रीच मैं ये चीज़ें लाना चाह रहा हूँ और उसका रीज़न ये है। आप उसको पूरा डिटेल बताते हैं और चीज़ें करते हैं। बेसिकली 3 AM का जो सीसो का जो मंत्र आप कह लें वो ये है कि कंफर्म करना कि हाँ भाई ये हो गया है, कंटेन करना चीज़ों को कि जहाँ तक चीज़ें हुई हैं वो फर्दर आगे ना बढ़ें, ये है कंटेनमेंट। क्लासिफाई कि क्या चीज़ गई है, किस तरह, कम्युनिकेट कि किसको क्या कम्युनिकेट करना है, ठीक है, कि आपको लीगल को कितना कम्युनिकेट करना है। स्टेक होल्डर्स को आप नहीं करेंगे बल्कि कौन करेगा, आपने क्या डायरेक्ट बाहर कम्युनिकेट करना है। जैसे बाज़ दफ़ा बैंक्स का होता है तो क्या उसका सीसो कर रहा होता है, बल्कि उसका पब्लिक रिलेशन मैनेजर या पब्लिक रिलेशन स्टाफ जो होता है वो कम्युनिकेट कर रहा होता है बाहर से, क्योंकि उसको पास सारा ये सारा का सारा इंसिडेंट प्लान में होता है कि किस तरह बाहर से कौन करेगा, बाहर के स्टेक होल्डर्स या पब्लिक से कौन करेगा, इंटरनली कौन क्या कर रहा होगा, किससे कैसी टीम होगी। तो ये कम्युनिकेट करना, कमांड करना, जाहिर सी बात है सीसो अपने आप को कमांड पोजीशन पे करेगा तभी वो सारी चीज़ें करेगा। और जब वो कमांडिंग पोजीशन लेने के लिए ओबियसली उसको बिजनेस नॉलेज और टेक्निकल नॉलेज भी उसको पता हो सकता है, इतनी पता हो कि वो उस चीज़ को एड्रेस कर सके, समझ सके और उस पर कोई अच्छा मशवरा या कोई अच्छा डिसीजन दे सके। और कैलकुलेट करना कि कितना इन टर्म ऑफ मनी, इन टर्म ऑफ टेंजिबल और इनटेंजिबल, नॉन टेंजिबल, टेंजिबल और इनटेंजिबल, इन दोनों के अंदर क्या लॉस हुआ है, क्या हुआ है, तो वो कैलकुलेट करना। अब आप टेंजिबल और इनटेंजिबल का क्या मतलब है कि पैसे कितने ज़्यादा लॉस हो गए, या क्या इस ब्रीच की वजह से हमारी कोई गुडविल तो लॉस नहीं हुई। अगर लेट्स से कि कोई गुडविल हमारी लॉस हो गई तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो एक एसेट है। तो ये सारा कैलकुलेट करना, उसको बोर्ड के अंदर प्रेजेंट करना पड़ता है, सारी चीज़ें हैं। तो ये इसका प्लेबुक है 3 बजे का। इसी तरह हर में, ये ज़रूरी नहीं कि 3 बजे, ये इंसिडेंट जब भी हो आपको एज अ सीसो, एज अ सिज्म सीसो, आपको ये तमाम की तमाम चीज़ों को फॉलो करना है और चीज़ें देखनी है। सेकंड पे सर, अगेन इसकी हमने बात कर ली थी, लैंग्वेज ऑफ सीसो, कि सीसो जो है वो कौन सी ज़ुबान बोलता है भाई, और अंडरस्टैंडिंग सीसो की क्या अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि फ़र्ज़ करें कि एक कंपनी है इको फॉर्ज स्टील के अंदर, आप एज ए सीसो अपॉइंट हुए हैं और वो कंपनी क्या है, वो एक मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है प्रोड्यूसिंग सस्टेनेबल लो कार्बन स्टील फॉर ग्रीन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए वो काम कर रही है। उसका जो कॉर्पोरेट ब्लूप्रिंट है यानी उसका विजन स्टेटमेंट, विजन क्या है, ड्रीम, कि उस कंपनी के एग्जिस्टेंस का ड्रीम क्या है, क्यों, क्या ड्रीम देखा कि वो कंपनी बनी। तो इनका विजन क्या था, टू बिल्ड द फाउंडेशन ऑफ अ जीरो इमिशन और ग्लोबल लीडर इन अ क्लीन सस्टेनेबल। तो इनका ये था कि ग्लोबल लीडर बनना है जीरो इमिशन के साथ, ताकि हम सस्टेनेबल स्टील मैन्युफैक्चरिंग में एक जो है हम एक लीडर बन सकें। तो विजन के बाद मिशन स्टेटमेंट, मिशन आता है। मिशन क्या होता है, द डेली वर्क, कि आपने उस ड्रीम को फुलफिल करने के लिए करना क्या होता है। तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने क्या करना है, उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग करनी है, क्योंकि वो
स्टील मैन्युफैक्चरिंग है तो उन्होंने एक हाई क्वालिटी की मैन्युफैक्चरिंग स्टील करनी है, और चूंकि वो सस्टेनेबल है और ज़ीरो एमिशन है तो रिसाइकल स्ट्रक्चरल और ये सारी चीज़ों को उनको देखना है ताकि इन्वायरमेंट में इफेक्ट ना हो, चीज़ों में इफेक्ट ना हो, क्योंकि उनका मिशन हमेशा उनके विजन से मिलना चाहिए। अगर यहाँ पे आप कोई प्रोडक्शन कोई ऐसी कर रहे हैं जो विजन से नहीं मिल रहा, तो लोग कहेंगे कि यार आप बना तो स्टील ऐसी रहे हैं जो कि पूरी इन्वायरमेंट को जो है ना वो ख़राब कर रही है, या आप कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पल्यूट कर रहे हैं, इन्वायरमेंट को ख़राब कर रहे हैं, या फला चीज़ आपकी की वजह से ख़राब हो रही है। तो ये दोनों चीज़ें साइड बाय साइड चल रही होती है कि विजन विच इज़ योर ड्रीम, मिशन विच इज़ योर डेली वर्क। तो एज अ सीसो इन चीज़ों को आपको बिल्कुल थॉरली, जिस कंपनी में भी आप एज अ सीसो या आप एज ए मैनेजर काम करें, तो एज अ सिज्म, सर्टिफाइड सिज्म, आपको इन चीज़ों को, बिजनेस लॉजिक को, बिजनेस ड्रीम को, बिजनेस जो उसकी पूरी स्ट्रक्चर है उसको देखना पड़ता है। तो उसके लिए सबसे पहले आपने विजन और मिशन को देख रहे हैं। कॉर्पोरेट गोल क्या है? कॉर्पोरेट गोल इनका क्या है? द डेस्टिनेशन, यानी कि डेली वर्क करते हुए आप प्रोड्यूस तो कर रहे हैं, लेकिन आपका डेस्टिनेशन क्या है? जाहिर सी बात है, प्रोड्यूस कर रहे हैं तो किसी वजह से कोई ना कोई आप सोच के कर रहे हैं ना कि क्या है, जो ड्रीम आपने देखा था उस ड्रीम को करने के लिए आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो आपका कोई डेस्टिनेशन है। तो क्या है कि स्केल मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेटर टू कैप्चर द यूरोपियन क्लीन इंफ्रास्ट्रक्चर मार्केट। तो आपका डेस्टिनेशन आप क्यों, जस्ट बेयर विथ मी, मेरे जरा बैटरी जो है ना लो जल रही है। शहीर भाई जी प्लीज। एक मिनट। Okay, Sabir, I think plugged in with the right, charger. तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने साबिर भाई को सुना और अंडरस्टैंड किया है कि व्हाट एक्चुअली इज ट्राइंग टू कन्वे यू, कि आप क्या उसे अंडरस्टैंड कर रहे हैं, किस तरीके से समझ रहे हैं। तो ही इज एक्सप्लेनिंग लाइक, कंक्लूड कर रहे हैं बस थोड़ी देर में। आपको कैलाश कोई सवाल करना चाह रहे हैं? आई थिंक मे बी कैलाश, यू आर कैलाश, आर यू देयर? जी साबिर भाई, आप कंटिन्यू कर लें। अच्छा, आप कोई सवाल कर रहे थे आप अभी? नहीं, वो कैलाश पे सवाल करना चाह रहे थे आई थिंक सो, लेकिन आई थिंक वो रेज हैंड कर दिया, मैं सवाल नहीं किया था। अच्छा, फिर आप कंटिन्यू करें, बट टाइम इज शॉर्ट बिकॉज़ वी हैव ओनली 6 मिनट्स नाउ। ओके ओके ओके। तो ये बेसिकली फिर ये ख़त्म हो गया। अच्छा जी, तो डेस्टिनेशन आपका, इसी तरह आपका जो कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव है, स्टेप्स, कि आपने उस स्टेप्स को पहुंचने के लिए क्या क्या चीज़ें लेनी है। तो अब आईटी डिपार्टमेंट जो है वो उसकी स्ट्रेटजिक अलाइनमेंट क्या होगी, तो यहाँ पे पूरी उसकी अलाइनमेंट लिखी हुई है, या वो बता रहा है कि आईटी ने क्या करना है उस कॉर्पोरेट ब्लूप्रिंट को देखते हुए। तो बेसिकली आईटी ने क्या करना है कि टू अलाइन विद द बिजनेस ऑब्जेक्टिव, बूस्टिंग प्रोडक्शन विदाउट डाउन टाइम, बगैर डाउन टाइम के उसने प्रोडक्शन को करना है। तो डिपार्टमेंट में ट्रांजिशन फ्रॉम पैसिव सपोर्ट टू एन एक्टिव बिजनेस इनेबलर, कि वो एक एक्टिव बिजनेस के अंदर आ जाए। अब जाहिर सी बात है कि ये प्रोडक्शन हो रही है, तो वो ये सोचेगा कि यार मैं कैसे एक्टिव बिजनेस इनेबलर कैसे हो जाऊं। तो सीसो जो है वो बेसिकली क्या कहेगा, वो बोलेगा कि क्यों ना हम अपनी फ्लोर पे जो है वो सेंसर्स लगवाएं और चीज़ें लगवाएं कि जो हमें बिफोर हैंड जो है हमें बता सके कि किसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, और उसकी वो पूरा एक केस बनाएगा, और उस केस के अंदर वो चीज़ें लिखेगा कि अगर ये फ्लोर डाउन होता है तो कितना हमें नुकसान होगा, और अगर हमें ये सेंसर लगाते हैं और चीज़ें करते हैं तो बिफोर हैंड हमें इंफॉर्मेशन होगी जिसकी वजह से हमारी ये सेविंग होगी, और हमारा सेंसर इतने का है तो हमारी सेविंग इतने की है। तो ये स्ट्रेटजिक अलाइनमेंट है विद द कॉर्पोरेट ब्लूप्रिंट। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको उसको देखना है। चले आगे आगे कर लें सर। ये था डिस्क्लेमर। गुड लक सीसोस आपका जो है। अच्छा, इसको जो है इसको स्किप कर दें आप, शहीद भाई वो चला दें, ये छोड़ दें शहीद भाई, ये छोड़ दें।
साइट चला दें आप। हमारी साइट? नहीं नहीं, जो मैंने दिया ना साबिर रजा, वो जो थी। अच्छा, वो मेरे पास अभी तो शायद इधर है। एक this जी, one? दिस वन। अच्छा, मैं जो आप लोग से बात कर रहा था कि एक टूल बनाया हुआ है मैंने, और जिसको है, तो ये वो पूरा टूल है। इस टूल के अंदर कोर टूल्स जो है, जिसके अंदर अगर आप ये बिजनेस केस बिल्डर, इसको जरा लॉन्च करिएगा सर। ये आपको इसाका के हवाले से ये आपको चीज़ें बता देगा कि बोर्ड के ऊपर क्या करना है, किस तरह करना है, ये तमाम चीज़ें, जिसके अंदर प्रपोजल कैसे बनाना है फलां। इसको बंद करके दूसरा चला लें। ये जो है एग्जाम सिमुलेटर है, लाइक इसके अंदर अभी 84 क्वेश्चंस हैं। ये आपको स्टार्ट करके आप इसको जो है ना, इसके अंदर हर इंसिडेंट के हवाले से है कि कितने क्वेश्चन इसके कितने, ये आपको रैंडमली सवाल करेगा। और फिर फ्रेमवर्क, जो हमने नॉलेज ऑफ स्टेटमेंट की हम बात कर रहे हैं, तो ये बेसिकली पूरा फ्रेमवर्क बनाया हुआ है मैंने इधर, जिसके अंदर सारे फ्रेमवर्क जो है ना इसमें है। इसमें आप लास्ट में देखें कि इसके अंदर पाकिस्तान का जो भी हाईली अभी नया फ्रेमवर्क है PISF, उसको ही मैंने डाला हुआ है। तो ये वो नॉलेजेस हैं, ये वो नॉलेज स्टेटमेंट हैं जिसको सिज्म को जो है, या सीसा को जो है, या इसाका को जो है, ये देखना है। इसी तरह ये IS गवर्नेंस फ्रेमवर्क, ये बेसिकली वो फ्रेमवर्क है जिसको इसाका कहता है। तो इसके अंदर आप देखें कि इसमें लिखा हुआ है कि जी पूरी इंफॉर्मेशन है कि गवर्नेंस क्या है, मैनेजमेंट क्या है, ये पूरा इसके अंदर किस तरह आपको सारी चीज़ें हैं। फिर रिस्क रजिस्टर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि आप रिस्क रजिस्टर कैसे बनाएं एज ए एसेट, क्योंकि आपको किस एसेट को आपको करना है, आपको IT एसेट को करना है। तो वो IT एसेट का एक रिस्क रजिस्टर हो कि वो कितना सीवियर है, वो कितना, तो इसका एक हीट मैप बनता है। ये सारा का सारा फिर आप इसमें पढ़ेंगे, देखेंगे रिस्क मैनेजमेंट में, ये सारा का सारा किस में है, रिस्क मैनेजमेंट में। ये जो हीट मैप बना हुआ है ये 5x5 मैट्रिक्स का, तो ये सारा आप उसमें देखेंगे। सिज्म मैथ प्रैक्टिस, ये जो है, ये जो सिज्म की जो ALE की मुख्तलिफ जो एक्सरसाइजेज हैं, इसके अंदर RO RTO कैसे कैलकुलेट करना है, वो सारा ये दिया हुआ है। और नीचे इसका जो है एक प्रैक्टिस एग्जाम ड्रिल है, ये नीचे ये नीचे जो है ना 3 नंबर पे, ये प्रैक्टिस एग्जाम ड्रिल है कि आप इसमें अपनी वैल्यूज डालें और ये वैल्यू बताएगा, तो आप इसको कैलकुलेट देख सकते हैं। पॉलिसी स्टैंडर्ड, अब जब हम जो बात कर रहे थे कि सिज्म का पहला काम गवर्नेंस है और वो पॉलिसी बनाना, तो पॉलिसी है, स्टैंडर्ड है, एक ऊपर जाइएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, पॉलिसी, स्टैंडर्ड और प्रोसीजर। तो आपको डिफरेंस मालूम होना चाहिए कि पॉलिसी में क्या फ़र्क है, स्टैंडर्ड में क्या फ़र्क है, प्रोसीजर में क्या फ़र्क है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। इसी तरह ये पूरा बना हुआ है कि पॉलिसी अगर आपको डॉक्यूमेंट बनाना है तो कैसे बनाएंगे, और उसने सामने आउटपुट पॉलिसी डॉक्यूमेंट एक बनाया हुआ है। इसी तरह आप, ये बिल्कुल एक स्टैंडर्ड पे है, ब्रीफ पे है, आप इसको फर्दर, ये टेम्पलेट लेके आप इसको फर्दर अपनी चीज़ें कर सकते हैं। उसके बाद से आपका लीडर माइंडसेट, ठीक है, सिस्टम लीडर माइंडसेट, हम वही बात कर रहे थे कि आपको टेक मैनेजर अगर आप अपने आप को रखेंगे तो आप सिज्म को पास नहीं कर सकते। और उस टेक मैनेजर के लिए क्या क्या है, वो ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये बिल्डिंग, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसको यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इनको अपने जहन से आपको वाइप आउट करना है। और एज अ सीसो लीडर तो आप सिज्म को पास कर सकते हैं। नीचे आए। अच्छा, ये अब ये ट्रेनिंग मॉड्यूल, हाँ, ये पूरा हम इसके जरिए पढ़ रहे होंगे। ये हमारा पूरा सिज्म की ट्रेनिंग का एक पूरा आर्किटेक्ट बना हुआ है। इसमें आप देखें कि इसके अंदर क्या है कि सबसे ऊपर क्या है, डोमेन 1 इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस, एग्जाम वेट 17%, 6 टास्क हैं और टास्क 1 to 6 है। तो इसने यहाँ पे बताया हुआ है टास्क कितने हैं। ये डोमेन का है, नीचे करिएगा, हाँ, ये जो लिखा हुआ है ऑफिशियल टास्क स्टेटमेंट, तो ये आपके वो टास्क हैं जिसको आपको डोमेन 1 में करना है। अब जैसे टास्क 1 है, एस्टैब्लिश एंड मेंटेन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस, तो बेसिकली आपको एक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस पॉलिसी बनानी है, जो कि पॉलिसी बिल्डर के जरिए आप वहाँ पे बना सकते हैं। तो ये सारे टास्क हैं जिसको आपको देखना है, हमें पढ़ना है, और ये तमाम हम यहाँ से इसको चीज़ें करेंगे। फिर दूसरे डोमेन में आइए, डोमेन 2,
इसमें इसी तरह इसमें 8 टास्क हैं। इसमें ये रिस्क का कॉन्सेप्ट और ये तमाम चीज़ इसने डिफाइन की हुई है। फिर इसने कुछ सवाल किए हुए हैं कि आप वो देखें, नीचे करें इसको, नहीं सेकंड डोमेन को ही नीचे करिएगा। हाँ, तो जैसे सेकंड डोमेन में तो इसमें ये इसके सारे टास्क हैं, ठीक है, कि ये टास्क 7 से लेकर टास्क 40 तक, ये आप सारे टास्क उसको हम करेंगे क्लासेस के अंदर, और इसके हम एज ए रोल बेस्ड हम ये काम कर रहे होंगे। आपको कुछ काम घर के लिए भी मिल रहा होगा, कुछ काम ये होगा। तो ये सारा डोमेन इसी तरह है। ये डोमेन का एक बिल्कुल एक जिस्ट कह लें या वो कह लें। इसके बाद इसी जैसा एक पूरा डिटेल के अंदर बना हुआ है, वो जब आप लोग क्लास में आएंगे तो हम उसको भी आपके साथ शेयर कर रहे होंगे और उसको देख रहे होंगे। जी, आगे आगे करें। और बस लास्ट था ये। हाँ, ये लास्ट था बस। थैंक यू वेरी मच। अब वो स्लाइड पे आ जाए। थैंक यू वेरी मच आप लोग का। और कोई सवाल हो तो आप करें, टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया, 1 घंटे से ऊपर हो गया मेरे ख्याल में। जी सर, मेरा क्वेश्चन है सर, ये ओपन बुक होगा या फिर क्लोज बुक होगा, और ड्यूरिंग द एग्जाम हमें वीडियो कैमरा ऑन करना पड़ेगा या फिर हम लोग अपनी मर्जी से किसी भी टाइम फ्लेक्सिबल टाइमिंग के दौरान ये दे सकते हैं? देखिए, ये जो मॉक एग्जाम है, ये तो आप सिजम एग्जाम की बात करें जो कि इसाका लेगा, या हम ऐसे जो मॉक कर रहे होंगे? जो एक्चुअल एग्जाम है सर्टिफिकेशन के लिए, जो सर्टिफिकेशन एग्जाम है उसके अंदर आपका ओपन बुक नहीं है, ये कंप्यूटर बेस है। इसके अंदर मल्टीपल चॉइस है, जो मैंने पहले ही बताया कि कंप्यूटर बेस्ड होता है, मल्टीपल चॉइस होता है और बुक ओपन नहीं होता। आप इसमें कोई भी चीज़ लेके नहीं जा सकते। वो बिफोर एंटरिंग द एग्जाम हॉल वो आपसे सारी चीज़, इवन योर मोबाइल विल बी स्विच्ड ऑफ, तो वो आपके पास वो चीज़ें रख रहे होंगे और आप वहाँ बैठ के हाँ, आप उसमें एक काम ये कर सकते हैं कि आप उनसे ब्रेक की बात करें तो आप थोड़ा सा शायद क्योंकि मैंने बहुत अरसे पहले दिया था और मैंने ब्रेक नहीं ली थी, तो मेरे ख्याल में ब्रेक होती है कि आप ब्रेक ले सकते हैं। 10 मिनट ब्रेक ले सकते हैं आप फॉर वॉशरूम वगैरह के लिए। हाँ, वो भी अगर आप प्रो मैट्रिक के अंदर दे रहे प्रो हैं मैट्रिक तो। के अंदर है। इसमें 2 तरह के, एक तो या तो घर आप पे भी अपने दे घर पे सकते ले हैं। लें, अगर घर पे है तो फिर आप नहीं कर सकते, और आप प्रो मैट्रिक के अंदर है तो आप ब्रेक ले सकते हैं। जी, आप होप प्रॉपर आपका से प्रिपेयर करते हैं। ओके ओके, शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर। अच्छा जी, thank you so much, Sabir, with such a nice presentation and obviously the brief about the CSUM examination preparation. अच्छा, मैं आप लोगों को ये सारी चीजें आप लोगों को ये जो हुआ है आज रिकॉर्ड भी हुई है, and we can share also on the group as well. तो आप आराम से दोबारा भी देख सकते हैं। एंड आपने देख लिया कि क्या क्या चीजें जो है वो 3D एजुकेटर के प्लेटफॉर्म से आपको मिलेंगी थ्रू साबिर, और किस तरीके से वो आपको एज अ मेंटोर लेके चलेंगे जिसमें आप अपने सक्सेसफुली एग्जाम को पास कर सकते हैं। So the registrations are open, and you can talk with Mr. Rashid over here, basically a course coordinator. He is going to provide all the details, how to register in the course and what actually the fee and discounts. As we have promised that they will get 60, like 20% discount who has already taken this presentation. तो आपको वो बिल्कुल मिलेगा सारी चीजें। यस, इंजीनियर अफजल, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही है जी सर? जी आ रही। आई एम फ्रॉम लाहौर सर, और मेरा एक्चुअली क्वेश्चन ये है कि मैं बिल्कुल नया हूँ इस फील्ड में और मुझे एक्सपीरियंस नहीं है बिफोर लाइक आईटी का या सिक्योरिटी का। हाँ, मैंने डेवऑप्स को थोड़ा सा ज़रूर देखा था, वो भी आज से को 2-3 साल पहले, और अभी मैं एक गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर रहा हूँ एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर। मैं पीएमपी सर्टिफाइड हूँ। तो मुझे फर्स्टली तो ये ज़रा थोड़ा सा गाइड कर दें, क्योंकि मैंने सेशन भी लेट ज्वाइन किया कि मुझे ये सीज़म जो है वो करना चाहिए, मेरी फील्ड से रिलेटेड है, और इसमें हैंड्स ऑन जो है उसको सर कैसे देखना है? थैंक यू। जी साबिर, आप जवाब देंगे या मैं दूं? आप देना चाहे आप दे दें सर। नहीं, आप प्रेजेंटर हैं, आज आप ही दें। ओके ओके। अफजाल, इसके अंदर बेसिकली ये है कि आपकी जो फील्ड है, आप पीएमपी भी हैं, और ये टोटली जो है आईटी सिक्योरिटी, आईटी गवर्नेंस है, ठीक है। उसके अंदर आप एज ए स्टूडेंट और उसकी नॉलेज के लिए आप ले सकते हैं। और दूसरा ये है कि चूंकि आज के दौर में बेसिकली जो आईटी है वो हर चीज़ के अंदर है। अब आप सॉरी, मैं ये भूल गया कि आप कौन से किस चीज़ के इंजीनियर है, क्या आपकी वो है ट्रेड क्या है? सर
मैं बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, बट मैंने पहले सैटेलाइट कम्युनिकेशन में काम किया है इन डिफरेंट मीडिया राइट सेक्टर। राइट उसके राइट बाद राइट मैंने एमएस किया है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, देन पीएमपी सर्टिफाइड हूँ, एंड नाउ आई ओके एम वर्किंग इन स्मीडा एज अ ओके प्रोजेक्ट टेक्निकल एंड फाइनेंशियल एक्सपर्ट। नाउ you have explained very well. So आपके लिए मैं ये कहूँगा कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि एज ए कम्युनिकेशन इंजीनियर या एज ए इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर या एज ए जिसमें भी आप काम करें, उसके अंदर आज के दौर के अंदर आपकी कम्युनिकेशन के अंदर तो ओबियसली इट इज़ देयर कि कैसे अपनी चीज़ों को आपने सेव करना है, कैसे बिजनेस पॉलिसीज़ बनानी है, कैसे अलाइनमेंट रखनी है उसको, ताकि आपकी चीज़ें सेव रहें। और इसी तरह तो ये आपके लिए और जब आपने पीएमपी भी किया हुआ है तो आपको पता है कि रिस्क क्या है, क्योंकि पीएमपी के अंदर उसके अंदर रिस्क और ये तमाम चीज़ें उसके अंदर वो मैनेज कर रहे होते हैं। तो ये आपका एक बड़ा समझ लें कि एक आपके पास एक साइडेड एक एडेड एडवांटेज हो जाएगा कि एज ए कम्युनिकेशन इंजीनियर और एज ए इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर आप इसको करते हैं, तो आप अपनी फील्ड को आप एज ए मैनेजर और एज ए चीज़ें, सिर्फ ये नहीं है कि आपको टेक्निकल होना लाजमी है कि आपको फायरवॉल को पता है, ये टोटली बिजनेस ओरिएंटेड और उसको अलाइनमेंट है। तो ये सारी चीज़ें आप अगर करेंगे तो आपका कम्युनिकेशन में भी और आपकी जो दूसरी है उसके अंदर भी आपका आ जाएगा। और एज आप इस समीडा में हैं तो आपको अपनी पॉलिसीज़ आप बना सकते हैं। आप जो है अगर कोई बिज़नेस आपने लिखना है, बिज़नेस प्रपोजल लिखना है, तो उसके लिए भी ये हेल्पफुल है और तमाम चीज़ें आप कर सकते हैं। तो या आई एम श्योर कि इट इज़ हेल्पफुल फॉर यू। जी बस सर बिल्कुल मेरा सही एक्चुअली सही। ये क्वेश्चन था कि हैंड्स ऑन जो है इसमें वो किस टाइप का है, लाइक कोई बंदे का बैकग्राउंड सिक्योरिटी से रिलेटेड होना चाहिए कि जस्ट इनिशियल बेसिस पे जस्ट इंफॉर्मेशन है कि हमने एग्जाम्स के लिए तैयारी करनी, एग्जाम पास करके हम इस काबिल हो जाते हैं कि इस सीजन में हम काम कर सकते हैं? जी डॉक्टर साहब। जी देखें, अपना क्या नाम है अफजल, मैं थोड़ा सा बताऊं आपको। अभी काफी कुछ ब्रीफ किया है अपना साबिर ने यहाँ पे। एक्चुअली जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है ना, ये हर डोमेन में फॉल कर रही है। इसकी एक बहुत बड़ा रीजन क्या है कि आपकी तमाम चीजें जो ना वो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड हो गई। नाउ वेदर यू आर टॉकिंग अबाउट द इंजीनियरिंग एस्पेक्ट, द मशीन्स, वेदर यू टॉक अबाउट द फैक्ट्रीज, लाइक फॉर एग्जांपल ओटी, वहां पर ऑपरेशनल, आपको पता है टेक्नोलॉजी जो है वो आईओटी जिसको आप कहते हैं वो इन्वॉल्व हो गई है। थिंग्स आर नाउ एक्चुअली रनिंग एंड मैनेजिंग थ्रू टेक्नोलॉजी वाया साइबर स्पेस, वाया इंटरनेट। तो आपका एनी हाउ सिक्योरिटी का कंसर्न आ जाता है। ठीक है, तो ये हर फील्ड के अंदर अब इसकी जरूरत पड़ने वाली है और पड़ेगी। और आप जैसे अपने आप को देख रहे हैं, तो अगर आप स्टार्ट लेते हैं यहाँ से, आप फॉर एग्जांपल सिस्टम से स्टार्ट लेते हैं, तो यू कैन अंडरस्टैंड द गवर्निंग पॉइंट्स एज वेल एज यू कैन आल्सो अंडरस्टैंड हाउ टू मैनेज, राइट। देखिए सीसो के लिए बहुत नेसेसरी नहीं है कि वो टेक्निकल भी हो। बहुत हद तक टेक्निकल होना हो सकता है कि वो हो तो अच्छी बात है, मगर एक्चुअली ही शुड बी अ गुड मैनेजर। he should know the how the governance can be actually run। तो यहाँ पर हमारे पास जो है ना इस वक्त फुकदान है कि हमारे जो टेक के लोग हैं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं या वो कंप्यूटर साइंसेस से हैं या वो और जगह, तो उनको टेक तो बहुत अच्छा आता है, बट दे आर वेरी पुअर इन कम्युनिकेशन। they cannot be able to tell and obviously to express their views what actually can get the benefit if we are going to implement any sort of technology। तो हम जैसे भी बता रहे थे साबिर की, फाइबर लगा ले सर। अब जाके वो कह रहा है फाइबर लगा ले सर, फाइबर उसको तो भाई ये 80 लाख रुपए की फायरवॉल में लगा के करूंगा क्या, व्हाट द बेनिफिट आई कैन गेट इट। अब अगर वो सीईओ नॉर्मली या चेयरमैन प्रेसिडेंट नॉर्मली ऐसा होता है, दे आर नॉट टेक गाइस, ठीक है, तो उसको लगता है कि यार मैं इतनी इन्वेस्टमेंट, हैवी इन्वेस्टमेंट क्यों करूं। ठीक है, तो एज सच आप एज अ मीडिएटर आप समझ लें, आप गवर्नेंस को समझाते हैं कि ये आज की जरूरत है, क्यों है डेटा इंपॉर्टेंट, क्यों है आपकी चीजें इंपॉर्टेंट, इससे क्या बेनिफिट होगा, अगर नहीं लगाएंगे तो क्या नुकसान होगा, और वो नुकसान कितना बड़ा होगा। ठीक है, तो फिर इस वजह से जो है वो वहां पर हमें ऐसे लोगों की जरूरत पड़ती है। दुनिया भर में जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आप देखें, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस में जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन हम नहीं समझते। इट इज नॉट नेसेसरी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गाय शुड बी अ टेक गाय।
ये तो वो आदमी होता है जो बिजनेस को आर्किटेक्ट करता है, जो बिजनेस को प्लान करता है, ठीक है, जो बिजनेस के हवाले से टेक्नोलॉजी को सजेस्ट करता है। इट इज नॉट नेसेसरी कि वो जो है वो टेक गाय हो, फिर वो जाके बताता है टेक्निकल लोगों को, मुझे ये करवाना है, आप बताओ तुम कैसे करोगे। जैसे कि बिल्कुल ऐसे ही है कि एक इंजीनियर जो है वो प्लान करता है। इट्स नॉट नेसेसरी कि इंजीनियर को सारी चीजें आती हो। बहुत सारी चीजें जब आप बड़े लेवल पे जाएंगे, मैं आया वो लाइक इन इंग्लैंड, मैं 11 साल काम किया, अगर पोर्टफोलियो डायरेक्टर, तो मेरा काम तो ऐसी चीजें बनवाना था जो मैंने जिंदगी में कभी पढ़ी नहीं थी, बट आई एम एक्चुअली मैनेजिंग द थिंग्स। मैं मैनेज कर रहा था चीजों को, और मैनेज करने के लिए यहाँ पे गवर्निंग माइंडसेट आपको लाना पड़ता है, हाउ टू मैनेज, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी अंडरस्टैंडिंग भी होगी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के बारे में जानेंगे भी। तो कहीं से तो गेटवे ओपन करना है, आप यहाँ से करें, आप सीजर से करें, आप सिज्म से करें, आप सिस्क से करें, आप आईएसओ से करें, वेर एवर यू वांट, आप कहीं से भी अपना गेट ओपन करेंगे, तब आप इस फील्ड में एंटर होंगे। जब आप एंटर होंगे तब आपको पता चलेगा यार हो क्या रहा है। पहले दिन सब कुछ नहीं सीख ले रहा कोई, ठीक है ना। हम 35 ईयर से सीख ही रहे हैं, आज भी हम स्टूडेंट ही है, ठीक है, हमें पता नहीं है, नई नई चीजें चली आ रही है, ओके, एंड वी आर वर्किंग। मगर सीखने का मतलब खत्म नहीं होगा, तो आपको भी कहीं ना कहीं से स्टार्ट लेना है। स्टार्ट ले लीजिए यहाँ से, इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, और ये आपको हेल्प करेगी, आपकी जॉब में भी हेल्प करेगी, और आपकी लर्निंग में भी आपको हेल्प करेगी। थैंक यू सर। तो एनीथिंग एल्स? शहीद भाई, मुझे यहाँ पे मैं एक बंदे का नाम ले लेता हूँ, रॉय खान साहब। रॉय खान साहब, आप कुछ नजर आ रहे हैं मुझे, आप चुप चुप हैं, आप कुछ कहेंगे? एनी क्वेश्चन? अब्दुल कादिर भाई? नहीं, चले। अच्छा जी, सब ठीक है, थैंक यू। मेरे ख्याल से ये आपको ग्रुप के ऊपर सारी चीजें मिल जाएंगी, एंड थैंक यू सो मच साबिर, एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन एंड ऑब्वियसली पार्टिसिपेट इन दिस वेबिनार। एंड आई होप कि आपने कुछ ना कुछ आज जरूर लर्न किया होगा। हर आदमी जिंदगी में कुछ ना कुछ अपने कुछ ना कुछ लर्न करता है, एंड विल गेट बैक टू यू। एनरोलमेंट्स आर ओपन, आपको तमाम चीजें जो ग्रुप पे दे दी जाएंगी और कैसे आपको इसमें एनरोल होना है। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपका शुक्रिया। थैंक यू, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज, अल्लाह।